नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Maratha reservation conundrum gets more and more confusing for me. It's absolutely. I don't really know how they're going to control it. Because look at the kind of records that have come up with regard to the Kunbi reservation. You already have, what, over 1,66,000 certificates which are already there. I mean, how are you going to control this situation? Sir, 20 lakh, they're talking about a figure named 20 lakhs, 29 lakhs. Now, if you're going to issue 29 lakhs could be reservations. That is going to impact on the OBC reservations which are already there. Yes. So how are you going to do it? So, the OBCs are on the streets because there's the reason they fear. Now, suddenly it has reached a figure of 29 lakhs. Then what is going to happen? Because you're talking about, now again there is Jatiya Janganna hona chahiye, lagatar, including Bhujbal, Ajit Pawar, everybody, because as Jarange Patil says, we are 50%. Yes. Bhujbal says he is 54%. Yes. Now, Maratha population is 50% as per Jarange Patil, and the OBC population as per Bhujbal is 54%. So that's these two together 104. And what about the rest? What about the rest? So, ये बहुत बड़ा issue है. Now you got SC/ST भी है. They are sizable population. Then you got Kshatriya or Brahman community. Now even if we say 14% Kshatriya Brahman community, and if you talk about and then you SC/ST, then you have Muslim population. So फिर घूम फिर के ये हो कि जाति have a caste census. Caste census करो. Rahul Gandhi से लेके सब वही बोल रहे कि caste census करो. Now in between that you are issuing certificates to Kunbis. So what happens? I mean, then there are conflicting statements about who's Kunbi and who's Maratha. लेकिन प्रदीप जी फिर उसके बाद क्या होगा? जो धांगड़ कम्युनिटी है, माली कम्युनिटी जो है, अपने कोली समाज जो है, वो सब ये कहेंगे भाई ये तो हमारे कोटे में से जा रहा है ना. वही तो मेन, that is the main issue. अगर आपने जैसे अब ये भी कहा कितने लाख आपने बताया 29 lakh is as per yes. 29 लाख सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल हैं, so I hope Mr. Eknath Shinde is being very well advised. I know he is a very clever man, and I also know that he is a very sincere, hard-working man. Let's be very clear. जहाँ तक के एकनाथ शिंदे साहब का सवाल है, very difficult to fool him. लेकिन अगर उन्होंने कमिटमेंट दी है, तो उनको उसके ऊपर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा. Right at the moment with us, our old friend from the Eknath Shinde Sena, Mr. Krishna Hegde. Krishna Hegde साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी. How are you, sir? How are you? All good. Thank you. So I can see the disappointment of losing the World Cup is still on your face. Yeah, I think every Indian is disappointed, but the Indian team played well to reach the finals. Yes. And more power to Rohit Sharma and Team India. I hope now that the T20 series is starting, say from Saturday, I hope we take revenge on the Australians. I don't think anything else will satisfy people. Yeah, Australia is a good team. They have already won the World Cup 6 times, so we have to beat them again. And but like you said, the World Cup comes once in 4 years. Every 4 years, and therefore nothing can replace the World Cup. That's right. And the euphoria of the World Cup. And the team gelled so well in the 10 matches that everybody's expectations were sky high. And suddenly, on that day, they stopped performing. I mean, they didn't perform 100%. The fielding was absolutely... It was kind of pathetic. And also, I think, you know it, Krishna Hegde Saab. You are a cricket buff. You played cricket yourselves. Most of the cricketers are very good friends of yours. Suddenly, I think Rohit Sharma perhaps lost his nerve. I think perhaps he should have taken a lesson out of Kapil Dev's book and attacked. He should have had at least 2 or 3 slips on a gully and then gone in for the kill. I am reasonably certain we would have gotten a few more wickets. But anyway, what's done is gone.
But great work from the Prime Minister, as you can see the footage right there. जी सर कुछ बोल रहे थे आप. That was fantastic. That was a great gesture from the Prime Minister. It was really and truly wonderful. Very proud of Yeah, him. the team did well. I think in the final match, they should have had a few, maybe played Ashwin because he's very experienced. Apart from being a spinner, he can bat well and he's India's highest wicket taker ever. I think with that kind of experience, it would have surely helped us in the final. And Ashwin had actually played against Australia in the first match, if you remember. Yeah, and I think a couple of changes were required, but however it was, when we win, we all praise the team. Suppose the team loses, then we should also give them the credit for having played 10 matches well. Well, it's our team and we're very happy. Because when the World Cup started, by the way, quite a few people were saying that India may not even reach the semi-finals. And look at the way these guys performed. It was brilliant. No, brilliant. Today, look at the, two-time world champion West Indies. They are in deep trouble. They couldn't even qualify. They were not even in the top 10 teams. Yeah, but this team, my God, I only wish age was on their side, especially Rohit and Virat. And Surya, and this kind of players. But Surya is the captain this time, so. But for T20. Yes. Yes. Right, Krishna Hegde Saab, fine, that's enough about cricket. I don't want to, rub salt on the wounds of people. क्या है कि अभी भी लोगों को वो जो सदमा था ये वर्ल्ड कप हारने का उससे लोग बाहर नहीं निकल पाए. Don't want to depress them more. कृष्णा हेगड़े साहब, जैसे आप मतलब प्रदीप जी और मैं अभी भी बात कर रहे थे कि भाई ये मराठा आरक्षण का जो मसला है यार, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर और बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा. बिकॉज ये तो वो भूत जो है वो बोतल के बाहर निकल गया. अब वो एकनाथ शिंदे साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, आई नो ही इज वन मैन हु कैन डू अ ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट, बट एट द मोमेंट एवरी अदर ओबीसी कम्युनिटी सीम्स टू बी इनसिक्योर कि कुनबी अगर 26 लाख है 29 लाख है तो यार हमारा क्या होगा सर. देखिए, if you look at the total number of Maharashtrian Maratha भाई brothers and sisters, अगर पूरे आप उनका संख्या देखें तो 4 करोड़ के ऊपर है और 4 करोड़ के सामने अगर आपने 29 लाख देखा तो वो फिगर कम है. हालांकि हम लोग कोशिश तो पूरा कर रहे हैं कि और लोगों को यहाँ पर हम प्राधान्य दें, बट 29 lakhs is not a figure to be worried about. And secondly, Justice Shinde, Justice Gaikwad, Justice Bhosle, they are part of the committee and they are, very, they are knowledgeable people on this subject. The Honorable CM has got knowledgeable people in the committee and he is being advised well and we do not see any issue. We do not want to, rub our OBC brothers and sisters wrongly. However, it is this that we want to give Marathas their due and also see that no injustice is done to the OBC brothers and sisters. But the only thing is, if you notice what happened just the other day, the Dangar, quite a few people from the Dangar community went berserk, attacked the collector's office and stuff like that. And I mean, I think perhaps some more information to people everywhere would help. अगर सबको ज़्यादा जानकारी मिल जाए कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे जा कर के और हम लोग क्या करने वाले हैं. और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, I really would like your personal opinion because I know you don't mince words. You are not the sort of person who's scared of saying whatever he feels. This thing of deadlines कि भाई 24 तारीख तक अगर ये नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, मतलब I don't think that's fair. I don't think that is being fair on the Chief Minister. He's done so much. You can't do that. So, देखिए, हमारे सम्मान्य जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, वो एक ही व्यक्ति है अभी तक जिन्होंने उनको आरक्षण दिया है. दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी तक 29 लाख, जैसे प्रदीप जी ने कहा, आपने कहा कि 29 लाख लोगों का जो वेरिफिकेशन कर ये बहुत बड़ा नंबर है 29 लाख, और कुछ ही दिनों में किया है. उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसको स्थापन कर जो मराठाओं का इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशल बैकवर्डनेस है उसको
कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे मराठाओं को कैसे हम बेनिफिट दिला सकते हैं, उसके लिए कमीशन किया। उसके अलावा उन्होंने 3 जस्टिसों का कमेटी कर ये पूरा एक कमेटी बिठाकर पेपर वर्क की स्टार्ट कर दी, और उसके ऊपर 29 लाख लोगों को अभी तक ऑलरेडी मिल गया है। तो देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री ने अभी तक इतना काम किया ही नहीं। तो मराठा भाई बहन भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, वो खुद एक मराठा भी है, और उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने सौगंध खाकर कही है कि मैं उनको आरक्षण दे के ही रहूँगा, तो बिल्कुल उनका अगर हमारे दिल में नहीं था, हमने प्रयास नहीं किया होता, तो आप हमको दोष दो, आप हमारे खिलाफ कुछ दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज जो आप बोल रहे हो, वो जिस गति से आप कर रहे हो, जिस गति से, जिस स्पीड से आप कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। छगन भुजबल साहब वही हाईलाइट कर रहे हैं, बोले 3000 से शुरू कर दिया, 9000 हो गया, 11000 हो गया, अब 11, 12, 15,000 ने अभी 29 लाख नोंदनी, यानी जिस प्रकार से लोगों को नॉमिनेट कर दिया है कि वेरीफाइड कि 29 लाख तक हो गया है, दैट इज वरिंग द ओबीसीज कि जिस रफ्तार से कर। वो भुजबल साहब ने जो सभा, उनका भी सभा कम नहीं था, ही हैड अ बिग ह्यूज ओबीसी ह्यूज रैलीज एंड ही स्टिल हैविंग रैलीज अक्रॉस द स्टेट। हाउ आर यू गोइंग टू कंटेन इट? बिकॉज जो उन्होंने सवाल उठाए यही है, 29 लाख तक विद इन कम समय में कैसे पहुंच गए, इतने कम समय में। और आज जो हम लोग देख रहे थे त्र्यंबकेश मंदिर में 20 रूम भर के, आपके पास प्रूफ है कि कुणबी मराठास कितना है, राइट, रेंजिंग फ्रॉम शिवाजी महाराज के एज से लेके आज तक। तो जिस रफ्तार से कुणबी मराठास का नोंदनी हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट इज वरिंग द ओबीसी कम्युनिटी। हेगड़े साहब, यू आर कीपिंग योर प्रॉमिस। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कसम कर सीएम एकनाथ शिंदे जी ने कसम खाया था, वो निभा तो रहे हैं, बट इतने भीड़ कैसे संभाल पाएंगे सर? दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू, द गवर्नमेंट एंड द पार्टी। हेगड़े साहब, देखिए, छगन भुजबल जी ओबीसी नेता है, उनको अब उनके जो ओबीसी भाई बहन है, हमारे जो ओबीसी भाई बहन है, उनका पक्ष रखने का उनको हक है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंचाकर उनको नहीं करना चाहिए। या फिर जो हमने कहा है, सीएम साहब ने कहा है कि भाई हम ओबीसी के शेयर से नहीं ले रहे हैं, तो वो जब सीएम साहब ने खुद क्लैरिफाई किया है, तो छगन भुजबल साहब को उसको मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब छगन भुजबल साहब कैबिनेट में थे या छगन भुजबल साहब असेंबली में थे, दोनों बार असेंबली ने जब यूनानिमसली ये डिसाइड किया और अप्रूव किया कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो छगन भुजबल जी भी उसी में शामिल थे, सभी एमएलएज में, और कैबिनेट में वो मंत्री है, तो जो भी डिसीजन है उनके सामने लिया जा रहा है। तो जब कैबिनेट में डिसीजन लिया जा रहा है तो वो बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। कृष्णा हेगड़े साहब, why is this happening? Why is Bhujbal साहब so disturbed? Why? देखिए, that question has to be put to him, but there is also in politics there is also a perception game. Yes. Where everyone wants to show that he is the leader of his community, and possibly that is one of the reasons. Secondly, maybe he is concerned, but we have actually assuaged his fears, we have informed him very clearly. So I do not see any trouble within the cabinet or within the government. So in effect what you're saying is there is no confusion, rightfully speaking, within the government. No, there is no confusion, because Bhujbal Sahab has been taken into confidence, whether when he was a MLA also he was part of it, the decision making, in the cabinet also he was part of the decision making. Now, yes. So which means the rallies which are being held by Bhujbal Sahab, they are representative of something else. As Hegde Sahab said, Bhujbal Sahab also has to show all his people that I am fighting for you, perhaps. See, like Vijay Vadattiyar ji said that I cannot be part of Bhujbal Sahab's rallies. Yes. He is also opposition leader. He is also after attending the rally. He is also OBC. After attending the rally. So he has said that. So
somewhere Nirmal Sahab also has to realize that, when his own community people may not back him, that too from the opposition, then there is something which is going wrong. We are with the Maratha brothers and sisters, we are with the OBCs, we want to give justice to all and there should be no injustice to anybody. Supriya Sule ji, before some time, few days, she was accusing that this government is just promising, they're not doing anything. Same with Maratha, same with Dangar, same with Lingayat, same with Muslim reservation. Prithviraj Chauhan also raised the issue of Muslim reservation. Now, if all these things come together, the government will have to find a solution, because the main reason is saying everybody, all political, the opposition especially, all the opposition political leaders are saying that you are brushing against under the carpet. But now the performance where Marathas, Kunbis are concerned, you have nearly nominated, verified 29 lakh applications. Which is fantastic. It's unbelievable. Unbelievable in such a short time. But where the other Dhangar community, the promise, they say Fadnavis has not kept the promise. When they point out at Devendra Fadnavis ji, they are also pointing out at Eknath Shinde ji as the chief minister, because he is collectively responsible. Now, where Muslim reservation is concerned, Dhangar and Lingayat, how do you see what's going to happen? Because Dhangar, as Bajaj Sahab said, already on the streets. Hegde Sahab. Supriya Sule ji is a good leader and she is a remarkable person. But you just answer one question. Who was the 4-time Chief Minister of Maharashtra? Who was the leader of opposition in the Lok Sabha? Who was 2 times cabinet minister in the union government? And who ruled the party apart from all these years, apart from all these posts, for 17.5 years in Maharashtra? Name the single one person and Supriya Sule ji will get the answer. Okay, who did what and who did not do what. So, in effect, what you're really saying is that Supriya Sule perhaps should ask her father. No, I'm not taking any names, but I'm just asking that Sir, since the Maratha reservation started, CM, एक बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एक बार डिफेंस मिनिस्टर, सब कुछ तो बोल दिया सर. मतलब आप तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह बात कर रहे हैं सर शोले में, कि जब शराब पीता है तो मतलब फिर जुआ खेलने में चले जाता है. शराब वराब नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा भाई, सबसे ज्यादा अगर सत्ता किसी ने चलाई है महाराष्ट्र में 50 साल तो वो कौन व्यक्ति था? अगर वो कर नहीं पाया तो दूसरे को दोष देके क्या मतलब है? लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं मतलब उन्होंने तो बहुत साफ कह दिया था बहुत पहले, जहाँ तक मेरा ख्याल है, because I remember interviewing him in 94-95 and just as an aside the question came up because at that time this question was not so serious and he said that no, Marathas are not entitled. He said this in so many words, the Marathas are not entitled to reservation. He had said so very clearly and I think that has been a stand per se, because he said that they are not socially backward. They may be economically backward, but they are not socially backward. So economically backward mein, there is an argument going on right now that they should be part of the EWS quota, not OBC quota. Mr. Hegde. No, see, EWS quota is also very important, and I think we can, several of the Marathas are not rich. There may be 2 or 5% of the Marathas who are rich. Yes. But the other 95% are not rich. Which is true for every community. Some are Mathadi workers, they are, working on the fields, some are farmers, some are Lohar, Sutar. doing Zarkam. Yeah, so Ji. obviously I think अगर कोई economically weaker section में आता है तो उनको बिल्कुल support करना चाहिए, और मराठाओं में से भी कोई economically weaker section में आता है तो the government को उनको support करना चाहिए. लेकिन हेगड़े साहब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि this is a question which is troubling me and it is troubling everybody else also. I would like your take on this. If the Maratha quota is not going to come from the OBC, where is it going to come from? Because after the 102nd amendment to the constitution, which put a ceiling of 50% on all reservations, unless and until there is one more amendment to that amendment by parliament, you will not be able to raise the reservation limit. Hegde sir. See, I can tell you that in EWS, several of the Maratha brothers and sisters can be adjusted. Yes. Secondly, we are filing a curative petition in the Honorable Supreme Court, and 3 honorable justices are working on it. So let us see what
formula they have to resolve this issue. I'm sure whatever has been thought of is going to stand its ground in court, and we are committed. We are doing our best. We've already proved by giving out 29 lakh, new beneficiaries or added them to this quota. And like we said, we want to give justice to all and justice to nobody. तो ये 29 लाख जो हैं प्रदीप जी, बिल्कुल, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले ही कुनबी रिजर्वेशन जो है उसी में आ गए ना, कुनबी रिजर्वेशन, मतलब कुनबियों का जो कुनबी की जो संख्या है वो बढ़ गई। यस, बिल्कुल 29 लाख से, कहने का मतलब ये हुआ। बट एक्चुअली स्पीकिंग व्हाट हेगड़े साहब सेज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हैंग ऑन अ मिनट, in a state as big as Maharashtra with almost 4 crore Marathas, just 29 lakhs is hardly a big number, it's a very small number. Hegde sahab. Yeah, that is what I'm trying to say, that it is till now not a very big number. Yes. So it's nothing to fear about. But the time period which you got it, that is scaring the other people, sir. You know, एकनाथ शिंदे जी जो रफ्तार में जा रहे हैं, जो रफ्तार में क्लियर हो रहे हैं, कुंभी जो है 1.5 crores। ये देखिए, कुंभी जो है वो जो खेती करता है वो है जी, और मराठाओं में भी लोग खेती करते हैं, और बहुत सारे जो मराठा है वो खेती करते हैं। और निज़ामशाही के वक्त पर जो मराठा थे बहुत सारे जो खेती करते थे, उनको कुंभी का दर्जा दिया गया था। तो उनका हक है जो हम उनको दे रहे हैं। इतने साल अभी हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, हम उनका हक उनको दिला रहे हैं जो अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया। बिल्कुल सर। एंड यू नो गोइंग बैक अ लिटिल बिट, द सेकंड चार्ज अगेंस्ट यू हेगड़े साहब, अगेंस्ट एकनाथ शिंदे जी गवर्नमेंट इज ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में भी आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो। यू आर ओनली असाइनिंग those areas as drought affected which has your MLAs। आपके MLA जहां पर है उनको drought affected डिक्लेयर कर दिया, सब फैसिलिटीज, पैसे और जितने प्रशासन से मदद मिलना चाहिए उसी एरिया। दैट इज व्हाट द कांग्रेस, ओनली कांग्रेस इज लेफ्ट है, बिकॉज बाकी तो कोई MLAs बचा नहीं है। तो कांग्रेस ऑलवेज एक्यूजेस यू दैट यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स and favoring only the Eknath Shinde ji MLAs where drought affected areas being declared is concerned and all facilities are going there. Why are you being partial, sir? Hegde sir, why the partiality? See, wherever there is a drought, it is our duty as a government to help the farmers of the area. Secondly, out of 288 members in the house, we already have over 220. बाकी बचा उनके पास 68 या 70 मेंबर्स उनके पास होंगे। अब वो भी है कि नहीं मालूम नहीं है। हाँ, वो भी अभी कुछ दिनों में होंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो भाई अभी आप बोल रहे हैं कि आप खाली हमको दे रहे हैं, हम यानी पूरे महाराष्ट्र कवर हो गए ना, 220 तो हम ही, आप कहाँ हो वैसे भी। कांग्रेस छोड़ के कोई है ही नहीं दूसरा। 50 दुरुस्त बात। लेकिन एक चीज तो है सर, अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं वहां पर तो आप लोगों ने प्रूव करके दिखाई दिया बिल्कुल कि लोग आपके साथ हैं। भले ही सामने वाले ये कहते हो कि भाई ए और बी फॉर्म नहीं होता, उसमें सिंबल नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन फिर भी मालूम तो पड़ जाता है सर कि रुख, देखिए बीजेपी का रुख किस तरफ है। या बीजेपी है, अजित दादा पवार साहब है, एकनाथ शिंदे जी है, तीनों का अगर आप मिलाने गए तो बाकी उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर भी। एक्सेप्ट द कांग्रेस which had about 202 or something like that, सिर्फ 202 करीब। Yeah, that is I think on 4th position. Yes. After 3 of us. After the 3. And if you take our combined this, then I think they are swamped. नहीं, फिर तो वो तो सामने should see the competition on the wall. जी, ये सामने तो फिर competition। But you know, Hegde sir, you have destroyed the myth that शरद पवार जी के वोट शेयर अजित पवार जी को नहीं जाएंगे, बाला साहब ठाकरे जी का वोट उद्धव के पास जाएगा, but it not come to एकनाथ शिंदे जी। You have destroyed that particular myth. So all जो सर्वेज जिसमें बिल्डअप हुआ था कि 17% शरद पवार जी के पास, 16% उद्धव जी, that has been destroyed. Do you think that has been destroyed? And when you say पंचायत to parliament, Modi and Eknath Shinde is going to be repeated. देखिए ये कोई मिथ नहीं था, दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल। वो ऐसा है कि उनके एक दो स्पोक्स पर्सन है, वो ये मिथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये MLAs है वो गुवाहाटी से जिंदा नहीं आएंगे, फिर मुंबई नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, सरकार नहीं बनेगी, 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी।
सवा साल हो गए अभी भी वो मिथ में ही हैं। अभी बोल रहे 31 दिसंबर को जाएंगे। अरे बाबा 31 दिसंबर बोला है, साल बताओ। जी 2034 में जाएगी क्या 2044 में जाएगी 31 दिसंबर? तो and वो and साल नहीं बताते, जी खाली डेट बताते। हम पूछते रहे साल तो बताओ। and that picture of Mr. Bhavan Kule at a Macau casino smacks of desperation. I think it's No, I think it's that is stupid. very extremely bad. You cannot get into someone's private life at all, and I don't think you should get into someone's private life. And I have released a video also, which got carried in a few places, that अगर कोई unverified photography और किसी का करता है, किसी के पीछे वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर बेच के ऐसा फोटो निकालता है और मीडिया में सर्कुलेट करके उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट में के तहत 3 साल का जेल और 2 लाख का जुर्माना है जी तो आई and, डोंट and थिंक what's दिस इज wrong with फेयर, it? जस्ट In any event, as a people, we are a very strange people. Let's be very clear. All our heroes, sir, Pandav or Kaurav, they only used to gamble the whole year round, or they used to fight wars. Are we trying to deny our ancestors? मतलब हम लोग क्या है sir? Come on, I mean this is like terrible. And नहीं, it's in कुछ really भी bad वो taste. कुछ भी फिगर लेके जाते हैं, कुछ भी फिगर बात करते हैं। वहाँ वो उनके फैमिली के साथ गए भवन कुले जी, उसके ऊपर भी बोल रहे कि नहीं वो वहाँ ये गैम्बल कर रहे थे। अरे किसके प्राइवेट लाइफ में आप क्यों जा रहे हो? आपके प्राइवेट लाइफ में हम गए क्या? All of us have gambled at some point of time or the other. In every Diwali Mela, there is Tambola, there is something or the other. अरे कुछ ना कुछ तो होता ही है यार, क्या है? What is this? And all the apps which are there, the Dream 11 app and that what is it? Some Rummy app and God knows what all. It's all over the place. I mean, this is absolutely crazy. I think perhaps we should. Now the time has come. After so many years, it's been what 76 years since we got independence. Now at least the time has come for us to grow out of all this. I think. What do you think, Hegde sir? No, I totally agree with you. I don't think anyone's private life should be questioned, and that too going to a place out of the country and shooting a video or a photograph and circulating it here. I don't think it is in good taste. Absolutely. Personally speaking. You know, this Peak Bima Yojana has been a success where the farmers are concerned. First, Eknath Shinde ji declared that you have cleared, you have approved around 48 lakh applications. Nuksan Bharpai urge has been approved. That's been a great relief for the farmers. 965 crores has been distributed as per you and as per Eknath Shinde ji. That Peak Bima, just Prakash se, it's been a boon because all the time we heard the Congress complaining that ये Peak Bima application किसान भर नहीं पाते, किसान ऑनलाइन चीज कर नहीं पाते within the framework, within the particular time. किसान ऑफिस ढूंढ रहे, पूरे जिला में ऑफिसेज नहीं है और ऐसे एरिया में इंटरनेट नहीं है तो फॉर्म ऑनलाइन कैसे? तो अलग अलग criticism was going on this particular government that rupee 1 Bima was just a hogwash, nothing implemented. So you have changed everything. The whole thing has changed, Hegde Saab, after you started this payments. Do you think that crisis is over? See, crisis is never over because every day something happens and every day you have to face, every day you have to, work for development, every day you have to be among the people. So your work is never done. If you look at the Honorable Chief Minister, 5 o'clock in the morning he had gone to see which of the building sites are polluting the air. He has asked the municipal commissioner 5 o'clock in the morning to order another 1,000 tankers to spray water on all the dust which is flying in the air, and also to have this seat technology. The other day before that, the Honorable CM had gone for Nala Safai, to oversee all that, to see that Mumbai is not flooded. Or before that, he had gone to check out the streets of Mumbai and to see that we concretize all the streets of Mumbai. Which chief minister, tell me, I have also worked with so many chief ministers. Which chief minister is going at 5 a.m. to do all this work? That to local corporators' work. He is going and doing a local corporators' work also. He is going to the Nala. He is going to see. We were talking about pollution, and the Honorable CM is so concerned that 5 a.m. he is there on the spot
when there is fog or there is mist or to see what exactly is the condition of Mumbai at 5 o'clock and how he can change that. So this is a person who feels from his heart. वो दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं. आप तो ये बोल रहे हैं who goes at 5 o'clock in the morning? Sir, which chief minister has gone to inspect a road? Till now, no one has gone. I told you I have worked with CMs. No one has gone. No one. This is the first chief minister who has gone like this. हर एक कोई रोड वगैरह की बात ही नहीं करता सर. कोई कौन सा सीएम बात करता है? नहीं कोई नहीं कि और वो भी आप सोचो पोल्यूशन के बारे में बात करना, रोड के बारे में, नाला साफ सफाई के में भी जाके उन्होंने चेक करके देखा. Nana Padole ji says the unemployment among the youth has increased in Maharashtra. Nana Padole first said that now forget the youth being unemployed, you have gone ahead and shut down Jilla Parishad schools. Naujawan सीखेंगे का. That is what Nana Padole is saying. You have endangered the education of the youth of the future. Now how do you answer this charge? Jilla Parishad schools are closing down, Hegde sahab. And Nana Padole sahab's aggressive attitude, I don't know, but he says there are no jobs for the youth. There's no jobs, there's no education now. Hegde sahab. I think Congress leaders are only unemployed now. There's no other work, so they keep talking all this. इतना काम हो रहा है 1.25 साल में, उनको दिखाई नहीं दे रहा है. किसानों को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री के कोष से आया, 6,000 रुपया हमने दिया. जो कांदा उत्पादन कर रहे थे किसान, उनको पैसा हमने दिया. टमाटो उत्पादन कर रहे थे, उनका क्विंटल का पैसा हमने बढ़ाया. उसके ऊपर जो पीक बीमा योजना की आपने जिक्र की वो हमने किया. मेट्रो का जाल हमने बचाया. कोस्टल रोड का काम पूरा चालू है. ट्रांस हार्बर लिंक चालू है. बीकेसी, कुर्ला और गोवंडी ये सब फ्लाईओवर खुल गए और किसी को पता भी नहीं चला. नो वन इज इवन वेटिंग फॉर द इनॉग्रेशन. नवी मुंबई का मेट्रो खुल गया, वहां पर इनॉग्रेशन नहीं हुआ, डायरेक्टली ओपन टू द पब्लिक. तो ये बोलेंगे अरे इतना महीने तक आपने तो ओपन नहीं किया जी. देखो अभी जैसे yesterday I was just speaking, there is this theory of one nation one election. 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, फिर कांग्रेस ने उसको निकाल दिया. अभी रामनाथ कोविंद जी जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब, उनको वो कमेटी का हेड बनाया. उन्होंने कहा कि विल मूव द फॉर्मूला. सीधा इनका ऑपोजिशन चालू गया कांग्रेस का. अरे भाई टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, इतना करोड़ों रुपया हर बार जा रहा है. साल में 2 इलेक्शन हो रहा है. पंचायत बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, लोकल सेल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है, ये जो असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है. वो सबको मिलाकर एक इलेक्शन करने की, वो भी अभी नहीं, जब 50% स्टेट्स रेटिफाई करेंगे उसको और सभी स्टेट्स की मान्यता मिलेगी, सभी पार्टीज की मान्यता मिलेगी, तब हो जाएगा. पैसा बचाने का प्रयास है. एडमिनिस्ट्रेटिव लोड जो आता है, सब टीचर्स काम पे लग जाते हैं, कलेक्टर काम पे लग जाते हैं, IAS ऑफिसर काम पे लग जाते हैं, BMC के लोग, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का मशीनरी काम पे लगता है. सबको एक ये कर सबका लोड हटाकर, सबका पैसे का लोड हटाकर एक अच्छा काम करने की कोई कोशिश कर रहा है. इनको ऑपोजिशन करने का है. क्यों करने का है? क्योंकि इनको ऑपोजिशन करना है बस. So in effect, what is happening right now is that the business of India only seems to be to fight elections. We are always in election mode. We are always in election mode. If someone is trying to rectify that, they have a problem with that also. Yes. There is no problem at least talking about it. In any event, Hegde Saab, thank you very much for joining us. It's been a great pleasure as always talking to you. God bless you. I'm sorry I could not come to your show because two of my close relatives expired in the last 15 days. Good Lord. Okay. So, but it's always a pleasure to get back to speaking to both of you. Thank you very much. And more power to your channel and all the best. And you still, a visit to the office, to the studio is still due. Whenever you are in BKC, please do come. This is the new studio. You've come on the 10th floor. This is the new studio on the 8th floor. It'll be nice to have you, sir. I hope the coffee is the same. Then I will the coffee is the same. Coffee is the same and the coffee man is the same. It's slightly better. Slightly better. Thank you very much. Namaskar, sir. Vande Mataram. Good day. Thank you. That was lovely. You can always depend on Krishna Hegde to treat everything with a slight touch of humor and everything else, which is rather nice and really and truly wonderful. I tell you what, I mean, it's not as simple as it sounds. Okay,
आपने 29 लाख सर्टिफिकेट दे दिए, ये सब दे दिया, बट एज यू सेड वेरी राइटली प्रदीप जी, हर एक में असुरक्षता की भावना फैल गई है, इनसिक्योरिटी है साहब, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। 29 लाख सर्टिफिकेट कहां से आ गए यार, इतनी मतलब एक महीने के अंदर अंदर। लेट्स आस्क निजाम साहब, निजामुद्दीन रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, और मुझे ऐसा लगता है उनको मिनिमम कम से कम असेंबली नहीं तो पार्लियामेंट में तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। कांग्रेस को क्यों नहीं लगता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, भले राहुल गांधी जी से बात करनी पड़े, जिस मर्जी से बात करनी पड़े, कि निजाम साहब को जरूर भेजें संसद में। निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। केपेबल है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या जबरदस्त लग रहे हैं सर, देखिए हाँ मजा आ गया। नहीं, लुक आज आपका बढ़िया चेंज एकदम लग रहा है सर। चर्चा आज रियल प्रिंस लग रहे हैं। पुराना पूरे देश में ही चर्चा है। वापस दाढ़ी का टाइम किया। अच्छा किया सर। थैंक यू सो मच। और आपने फेसबुक पे भी लाइक किया है, उसके लिए भी थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। यस सर, थैंक यू सर। अच्छा बताएं सर। निजाम साहब ये बताएं, दो चीजें हैं, पहले आप क्या चाहेंगे, पहले महाराष्ट्र के बारे में बात करें, राहुल गांधी के बारे में बात करें, आप बताएं। चलेगा, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, आप जहाँ भी चाहें। सर ऐसा है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार अभी 29 लाख पुरावे मिल गए कुनबी होने के, और वो सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, मतलब 29 लाख और रिजर्वेशन दे दिया आपने। ओबीसी, अब ये सारे ओबीसी कोटा में से ही जाएंगे, इसका मतलब बाकी सबका कम हो गया ना। अरे भाई देखिए, ये तो सरकार धोखा दे रही है। सरकार धोखा इसलिए दे रही, देखिए सर, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने ये तय किया था कि रिजर्वेशन हम आपको अलग से देंगे जी। ये तय किया था प्रधानमंत्री ने, और स्पेशल सेशन बुलाया था। स्पेशल सेशन में वो देने वाले थे, उनकी सब तैयारी थी, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने उससे हटकर महिला रिजर्वेशन को लाया, और उसको भी पूरा रूप से नहीं लाया कि 10 साल बाद दे देंगे। इससे ये है कि ये लोग जो हैं सिर्फ बेईमानी करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में इतना बुरा सिचुएशन इनका हो जाएगा, इनके मंत्रियों की गाड़ी रोक दिया, कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदे बंधक बना के रख लिया। जब सिचुएशन बिगड़ी तो इन्होंने धोखा देकर ओबीसी के कोटे से कुनबी रिजर्वेशन का और बोगस तरीके से निकाल के इधर से देना चाह रहे हैं। अब महाराष्ट्र के दो कद्दावर नेता, एक पंकजा मुंडे जी, दूसरा जो है छगन भुजबल जी। अगर आपको याद हो, पिछले डिबेट में मैंने ये कहा था कि भुजबल साहब को इस्तीफा देके बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो सामना नहीं कर सकते इसका जो ये हो रहा है। तो वो उस पर काफी चर्चा भी हुई। आज वही बात सामने आ रही है कि पंकजा मुंडे भी अपनी सरकार के विरोध में है, भुजबल जी विरोध में है, बाहर निकलकर ताल ठोक रहे हैं कि हम जो है अपने ओबीसी से रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। और सत्यता भी यही है कि कोई भी समाज जिसका अपना रिजर्वेशन है वो दूसरे को क्यों देगा। अगर सरकार झूठ बोलती, तो सरकार ने तो डायरेक्ट प्रॉमिस किया था ना कि हम जो है इसको संसद में पास करा के आपके लिए एक्स्ट्रा कोटा लाएंगे। और उसका उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि बिहार असेंबली में 75% करने की तैयारी है। जब देश का अपोजिशन लीडर खुद राहुल गांधी, खुद मनमोहन सिंह जी, खुद जो है दूसरे लीडर अपोजिशन पार्टियां चाह रही हैं कि रिजर्वेशन का ये जो फिक्स है उसको तोड़कर उसका प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो संसद में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इनको चाहिए था कि जब इन्होंने प्रॉमिस किया था महाराष्ट्र के लोगों से, तो इनको पूरा करना चाहिए। ये बजाय पूरा करने के अब अपोजिशन का सहारा ले रहे हैं कि वो नहीं करने दे रहे हैं, हमारे मोर्चे धरने को वो जो है आग लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ बेईमानी और झूठ की सरकार है जो उसी पर टिकी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और जहां तक रिजर्वेशन देने का सवाल है, अगर सरकार ने प्रॉमिस किया तो सरकार की जवाबदारी बनती है। जनता ने उनको हैरान नहीं किया है कि आपको आज ही देना है, कल देना है। ये तो विधि तलाश रहे हैं कि कैसे मराठा और ओबीसी के बीच झगड़ा कायम रखे महाराष्ट्र, क्योंकि उनका तो काम ही है सत्ता की लालच में वो कब किसको तोड़ेंगे, किसको गिराएंगे, किसकी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, तो वो कर सकते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि राज्य सरकार को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, खुद इन्होंने फडणवीस जी ने प्रॉमिस किया था कि हम स्पेशल सत्र में इसकी चर्चा करके लेके आएंगे, तो वो तो लेके नहीं आए, इसलिए तो धोखा देने वाली बात है सर। लेकिन यहाँ पर जो आज जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो हो गया है ना निजाम साहब, मतलब जाति और जाति के बीच में लड़ाई हो रही है, इस पर भी अभी विरोध है।
सर जाति और जाति के बीच में लड़ाई तो हो गई। जो कुनबी की सर्टिफिकेट देने का ये काम कर रहे हैं ना सर, ये तो धोखा है ना एक तरह से धोखा इसलिए है कि जो लोग जो रियल में ओबीसी के लोग थे वो उनके साथ उनको छलावा हो जाएगा ना, जितना परसेंटेज देंगे और जितनी आबादी के लिहाज से उसको देंगे तो बाकी का एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे। अरे 29 लाख सर्टिफिकेट आ गए हैं सर इतनी जल्दी। ये सब आ रहे हैं, कल इस पर फिर चैलेंज होगा, फिर इसको उड़ाएंगे। आप देखिएगा ये वो लोग हैं जो कभी भी, क्योंकि अभी तो इन्होंने बाकायदे एक टेबल लगा दिया है कि जो आता है और उसको तुरंत देना चालू कर दीजिए। आज आपने मंदिर में देखे त्रयंबकेश्वर टेम्पल में बोले कि शिवाजी महाराज जी के वक्त का पूरे रिकॉर्ड्स है, 20 रूम भरा हुआ है, 20 रूम 20 रूम मंदिर के भरा हुआ है रिकॉर्ड के। ये अभी की बात कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको इनका बयान याद हो तो इन्होंने कहा कि निजाम हैदराबाद के टाइम जो लोग पहले थे उसका रिकॉर्ड मानेंगे। तो ये तो एक तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है सर, ये तो एक तरह का एडजस्टमेंट हो रहा है ना। क्या मराठा इस बात को, क्योंकि मराठों को तो अपनी राजनीति करनी है, उनके परसेंटेज उनको बढ़ाने हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ओबीसी का 65% से ऊपर हो रहा है, तो ये तो एक तरह से लड़ाने वाला काम हो रहा है। ये जो है रियल नीति नहीं है। अगर राजनीति में देखा जाए तो ये ओबीसी के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है। बस सही है, आप जो बोल रहे हैं निजामुद्दीन साहब वो सही बोल रहे हैं। बिकॉज कल भुजबल साहब ने कहा कि ओबीसी समाज का 54% है, वही जरांगे पाटिल जी इमीडिएटली कहा कि हमारा 50% है। यानी अगर मराठा समाज 50% है, ओबीसी समाज 54% है, तो हो गए 104%। तो बाकी तो जनगण बाकी कहां गए, मुस्लिम कहां गए, दलित कहां गए, दूसरे कहां गए? बिल्कुल बिल्कुल वही पूछ रहा हूं। ये तो आप दोनों के वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। आप देखिए ये टकराव की स्थिति है और ये तमाशा जो है बीजेपी के नेता खुद देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इसका गलत मैसेज जाए और इस पे दंगा हो। ये अगर ओबीसी और मराठा को ये लड़ाने की साजिश है और ये साजिश पूरा राज्य की सरकार कर रही है। राज्य सरकार के जो गृह मंत्री हैं ये इस साजिश का बड़ा हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इस तरह चीजें ना होने पाए, लेकिन अब जो सरकार में क्योंकि शिंदे साहब का कमिटमेंट है तो कहीं गलत रास्ते से जो अगर उनको देंगे तो आज नहीं तो कल रोड पे वो आने वाले हैं ना। विदेटीवार जी थे निजामुद्दीन साहब, विदेटीवार जी थे ओबीसी रैली में। अभी कांग्रेस का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरफ हो। विदेटीवार साहब समर्थन पहले किया था भुजबल साहब का, वही प्लेटफॉर्म में खड़े हो गए, बोले कि हम भुजबल साहब के साथ हम जो रियल हमारे विदेटीवार साहब ने जो कहा, जो नाना पटोले कहे वही है। भुजबल भी पहले उसी समर्थन में रहे। पंकजा मुंडे के पिताश्री जो है अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी उसी के संदर्भ में रहे हैं। तो जितने लीडर थे तो सारे जो नागपुर से जो इनका ओबीसी समाज का जो अलग संगठन है वो सारों के साथ चर्चा होने के बाद ये बात हो रही है। सरकार तो इनके साथ छलावा कर रही है ना, इसीलिए तो वो ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं सर। अगर सरकार को इतनी दिलचस्पी है और उनको मदद करना चाहते हैं तो उनको चाहिए था कि ओबीसी का जो सेंसस है, जो उनकी जनगणना होनी है, वो जनगणना क्लियर करके राज्य सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता के सामने साफ तौर पर रख दे। उससे ये साबित हो जाएगा कि कितना परसेंट मराठा है और कितना परसेंट ओबीसी है। दुरुस्त बात। उसके बाद आप रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है, देखिए साहब, आज जैसे राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में अगर हमारी सरकार वापस आती है तो जातीय आधार पर जनगणना होगी ही, जैसे बिहार में हुई है वैसे ही हर स्टेट में होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहां महाराष्ट्र में करने में क्या तकलीफ क्या है? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में देखिए सर, अगर महाराष्ट्र में हमारी सत्ता रिटर्न होती है चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो ये सरकार कब जाएगी कब आएगी वो हालत चल रही है। हमारी सरकार आते ही तुरंत जनगणना होगी, तुरंत। सेंसस के लिए राहुल गांधी का कमिटमेंट पत्थर की लकीर है। अगर हम एलआई के साथ भी सरकार बना के आएंगे तो भी हम करेंगे, क्योंकि बिहार में तो जो हुआ उसमें कांग्रेस शामिल है ना। तो राजस्थान में अगर वो कमिटमेंट कर रहे हैं तो 100% करने वाले, तेलंगाना करने वाले हैं, तो कर्नाटका में ऑलरेडी चालू हो गया है। तो ये सब चीजें होनी ही है। तो इसके लिए राहुल गांधी ने जो कहा है जी, एक व्यक्तिगत सवाल, छोटा सा सवाल है, पता नहीं आप इसका कैसे जवाब देंगे, क्या देंगे, चलिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मजाक में ले रहे हैं, राहुल गांधी तो खुद मजाक में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपसे पूछने का।
वो क्या है कि अभी अभी राजस्थान में राहुल गांधी जी की एक रैली थी जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र किया, तो ऑडियंस में से, लोगों में से किसी ने जोर से बोला पनवती ऐसा करके, तो राहुल गांधी ने बोला हाँ पनवती पीएम ऐसा करके बोला, तो लोग बहुत हंसे। अब उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत दायर कर दी है राहुल गांधी के खिलाफ कि ये हेट स्पीच है, कि ये नफरत भरी स्पीच है। देखिए, इनको कोई काम है नहीं, ये अच्छी बातों को भी अगर कोई मजाक में करे तो इनके लिए तो सरकार, इनकी और इनकी जो कमीशन एजेंसियां हैं जो इनके लिए काम करते हैं वो उसको तुरंत बुरा मानते हैं। और इनके लोग जिस तरह की स्पीचेस करते हैं, खुलेआम करते हैं, संसद में खुलेआम करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार तमाशा देखती है, इनकी मिनिस्ट्री तमाशा देखती है, होम डिपार्टमेंट इनका तमाशा देखता है। तो ये तो इनका एक साजिश रहती है कि अपने लोगों से ही कहलवाइए, जबरन कहलवाइए और करिए। तो इस चीज को कोई महत्व नहीं है। अगर उनको अगर जाना है कोर्ट जाए या उनको कंप्लेन कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल से हो गए हैं। एक सेकंड, लेकिन इसी संदर्भ में आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा, वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना सर, निजाम साहब। सर वो क्या, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया और दूसरे शब्द वो कहते हैं, उन्होंने उनकी मां के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उसके पहले उन्होंने, पूरा देश जानता है कि मूर्खों का सरदार कौन है और मूर्ख कौन है, ये पूरा देश जानता है, उसमें बोलने की क्या जरूरत है। आपने अभी ये जो अभी चुनाव, ये सारी अभी जो मैच हुआ है उससे आपको सब पता चल गया होगा, पूरा देश देख रहा था किस तरह से लोग उनको जो है देश भर में आज वो जिस तरह से ट्रोल हो रहा है उसको लेकर, कितनी घटिया बात है। आप सोचिए जिस तरह का हरकतें उन्होंने खुद किया, 3 घंटे लेट जा रहे हैं, आज देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं है, 150 करोड़ का देश है, उसका प्रधानमंत्री इस तरह की छोटी छोटी हरकतें, वहां जय श्री राम के नारे लगवाना, ये सब क्या है? तमाशा इवेंट हो रहा है ना। निजामुद्दीन साहब, मोदी साहब ने कहा 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, मोदी जी का गारंटी, उनको कहा नरेंद्र मोदी गारंटी, और 5 साल एक्सटेंड किया, 5 साल, सुनिए 5 साल एक्सटेंड किया, 80 करोड़ का राशन 5 साल बढ़ा दिया। बोले कि देखो मैं क्या करता हूं, डेवलपमेंट और गरीबों का सेवा, और कांग्रेस है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तो किसको, तो ये 9 साल बेमिसाल मोदी गारंटी, ये आप कैसे टक्कर लोगे निजामुद्दीन साहब? अरे आप ऐसे सोचिए साहब, उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब हो गए, ये उन्होंने गारंटी दे दी कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, यानी उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया, यानी वो भीख का कटोरा देने वाला काम कर दिया ना, 5 किलो अनाज देके बाकी का बेईमानी करके अडानी अंबानी को दे दो, सारी चीजें उनके नाम पर कर दो। तो ये इसलिए जो कर रहे हैं देश के हित में नहीं है। सर मदद करनी चाहिए, हर गरीब को मदद करनी चाहिए, देश में जो नागरिक है उसकी जरूरत को मदद करना चाहिए, लेकिन ये दिखाना कि देश 80 करोड़ गरीब हो गया, कि ये जो कर रहे हैं ये एक तरह का धोखा दे रहे हैं लोगों को, और ये धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जो बातें बेमिसाल करते हैं, आज की हालत आप देखो, आप ट्रेनों में जा नहीं सकते, जो वंदे भारत ट्रेन चलाने का उनका जो राज चल रहा है उसमें लोकल ट्रेनों को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप गांव नहीं जा सकते सर, 300 रुपए का टिकट आज 1500 को नहीं मिल रहा है। आप जिस तरह की आज देश में व्यवस्था हो रही है, आज जिन फ्लाइटों में आप सफर कर रहे थे, आज उसका किराया एक एक सेक्टर पे 20 से 30 हजार हो गया। कल दिल्ली का किराया वन वे 32,000 था मुंबई दिल्ली से। ये सब जो हो रहा है ये लूट मार है उन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का, जो इनके साथ इनको धन मुद्रा दे रहा है। गरीबों के लिए हालात, इन्होंने कहा था कि गरीब हमारी जहाजों में जाएगा, आज वो ट्रेन में जाने के लायक नहीं बचता। किस बात का बेमिसाल 9 साल, 9 साल लूट के 9 साल, 9 साल इस देश के बर्बादी के 9 साल, 9 साल कर्ज में डूबने के 9 साल। जो कहा कर्ज 41 से 50 लाख करोड़ था, वो आज 1,74,000 से 1,75,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, यानी 4 टाइम्स ज्यादा लोन जो है कर्ज इन्होंने ले रखा है। और पॉलिसी कितनी घटिया है कि ये इलेक्शन में अभी कह रहे हैं कि हम भी 500 में सिलेंडर देंगे, तो पहले कोई देश को दे दो ना। आप देश में जो पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है वो देश की है, राज्य की तो है नहीं। तो देश में आप देना नहीं चाहते, राज्यों को आप झूठ बोलना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है,
अरे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की चीजों को लाके आपने बिठाया। आपका गृह मंत्री, आपका कृषि मंत्री का बेटा गांजा अफीम की खेती करता है, वो सरेआम टेलीविजन पर कह रहा है, उसकी बात आप उसकी जांच नहीं कराते, उसके बाप से इस्तीफा नहीं लेते। तो ये सब तो घटियागिरी का काम है ना सर, सच को छिपाया नहीं जा सकता। आज जो हालात मोदी जी और उनकी सरकार ने देश का किया है, इसको भरपाई को बरसों लग जाएंगे सर। लेकिन ये बड़ी ये जरा अजीब हरकत है निजाम साहब, वो वीडियो हर जगह पर हुआ है। अगर मान लीजिए वो किसी कांग्रेस के मंत्री के बेटे के साथ होता तो अभी तक तो सारी एजेंसियां पहुंच गई होती उनके घर पे। सर आप खुद देखिए कि 2G स्कैम में जिस टाइप में विनोद राय ने सारी बातें रखी थी, सब बोगस निकली ना सर, फिर भी गिरफ्तारी कांग्रेस ने कराई ना अपने लोगों की जी। तो आज सच जानने का जनता का अधिकार है। देश भर से लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके बेटा कह रहा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा, करोड़ों की डील का रास्ता दिख रहा है। तो उस डील पर आज तक क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं उसको अरेस्ट कराया, क्यों नहीं उसको जेल भेजा, क्यों नहीं उससे इस्तीफा लिया? और मीडिया भी बात नहीं कर रहा। यहाँ अपराध निजाम साहब अपराध करता है। निजाम साहब मीडिया भी बात नहीं कर रहा उसके बारे में। नहीं, उनकी मीडिया नहीं बात कर रही, बाकी लोग तो बात कर रहे हैं ना सर। जो गोदी मीडिया है, जो भ्रष्ट मीडिया है, जो लुटेरों की मीडिया है, वो तो बात नहीं करेगी ना सर। वो तो उनके पेट पे पड़ रहे हैं ना, उनका पेट उन्हीं से भर रहा है। अमित शाह जी हर रैली में आज के तारीख में पूरे हफ्ते अब देखो बोले कि ये तारीख आप लोग याद रखो, 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का पुनर्निर्माण। अभी अमित शाह जी वक्त भी बताते हैं, टाइम बोले मुहूर्त है 12:22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठान मंदिर का करेंगे 550 साल के बाद। और अमित शाह जी याद दिला रहे हैं कि इससे पहले 5 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री ने भूमि विभाजन किया था। वे लोग ये बीजेपी है जो 5.5 साल के बाद निर्माण कर रहे हैं पुनर्निर्माण। कांग्रेस ने 70 साल से इसको रोक के रखा था। कांग्रेस हर रैली में अमित शाह जी लोगों को याद दिला रहे। आप ये देखिए, अब उनके पास डेवलपमेंट का, विकास का कोई मुद्दा नहीं है नायर साहब, तो उनके पास ले देकर यही एक मुद्दा बचता है। लेकिन इसमें भी वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं करते, ब्राह्मण करेगा। उन्होंने शिलान्यास भी नहीं किया, उसको भी ब्राह्मणों ने किया। और ये जो आज वहां मिल रहा है उनको मंदिर का इशू, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया। तो सरकार अपनी पीठ झूठी थपथपा रही है। अगर उन्होंने इस देश में 9 साल डेवलपमेंट किया होता तो आज इनको भगवान राम के शरण में वापस नहीं जाना पड़ता। जितना मार्केटिंग इन्होंने, ये मंदिर का इशू भी आप देखना, ये धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है। अभी इन्होंने उसको भी एक इवेंट बना दिया और लोगों से ये कहा कि मुझे वोट दो तो मैं तुमको दर्शन के लिए भेजूंगा। यानी जिस राम राज्य में लोग खुद रह रहे हैं, जो हिंदू धर्म की अपनी परंपरा है, उसके लिए बीजेपी को वोट देंगे तो उसको दर्शन करने देंगे। अगर वो वोट नहीं देगा तो दर्शन नहीं करने देंगे। या क्या अगर ये हार गए चुनाव में तो क्या किसी हिंदू भाई को वहां जाने नहीं देंगे? ये तो एक धोखा है। और ये सबसे बड़ा इलेक्शन मूवमेंट में, इसमें इलेक्शन कमीशन को मोदी जी और इनके ऊपर केस करना चाहिए। ये खुद इलेक्शन कैसे जो है स्वायत्त संस्था है जो अपनी आजाद रहकर और लोगों पर कार्रवाई करे। तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान में राहुल जी अगर कुछ जरा सा भी कुछ इधर उधर कर दे, बात कर दे, तो फौरन जो है बीजेपी इलेक्शन कमीशन पहुंचती है। और एक तरफ आप हिंदू धर्म की आस्था पर आप वोट मांग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए तो आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, आप वोट नहीं देंगे तो आपको दर्शन नहीं करने देंगे। तो ये तो एक धोखा है ना। इन्होंने उसको इसी तरह का एक इवेंट बना रहे हैं। धर्म इवेंट से नहीं चलता, धर्म जो है वो आस्था से चलेगा। हिंदू धर्म के का आस्था का केंद्र है वो, लेकिन इवेंट का केंद्र नहीं है। मोदी जी इवेंट का केंद्र बनाएंगे और इवेंट करने के लिए लाखों लोगों को वहां जमा करेंगे और सरकार का पैसा। एजेएल आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 दिन से लगातार ट्विटर में प्रेस रिलीज में कि एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का हमने 752 करोड़ के प्रॉपर्टी अटैच किए। दिल्ली में अटैच किया, मुंबई में अटैच किया, लखनऊ में अटैच किया, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। तो बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको हाईलाइट करे, पिछले 2 दिन से लगातार चालू है। निजामुद्दीन साहब,
ये चाहे जितना दबाव बना ले, देश की जनता इनसे ऊब चुकी है। इनके भ्रष्टाचार को मीडिया छिपाए, इनके भ्रष्टाचार को अधिकारी छिपाए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आज सोशल मीडिया का दौर है, आम आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है और वो सारी रियलिटी को जानता है। जिस तरह से देश के लोग इनके बारे में लिख रहे हैं, जिस तरह से देश के लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को कोई रास्ता नहीं सूझेगा। आप देखिएगा जब अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा 5 राज्यों का, इनकी जमीन निकल चुकी होगी और वही 2024 के फाइनल का बिगुल भी वही होगा। फिर ये और तेजी से ईडी करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो जनता के साथ संवाद करें। इनके पास जो साधन है वो किसी न किसी तरह लोगों को परेशान करने का। तेलंगाना के हमारे एक लीडर के घर इन्होंने छापा डलवाया, उसके पहले आपने देखा कर्नाटक का क्या हल करने की कोशिश किया, राजस्थान में आपने देखा कि किस तरह इनके लोग और वहां ईडी के लोग पकड़े गए 15 लाख कैश लेते हुए। तो ये सारे ड्रामा इलेक्शन को डिस्ट्रॉय करने या स्वशासित संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन ये देश बदलेगा और इनके चंगुल से मुक्ति मिलेगी और इसकी शुरुआत जो है इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव से हुआ है। और आप देखिएगा जो रिजल्ट आने वाला है वो इनके सारी चीजों पर पानी फिर जाएगा। निजाम साहब, 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, याद होगा आपको। आप कर्नाटक जीते थे, आप छत्तीसगढ़ जीते थे, आप मध्य प्रदेश भी जीते थे, और फिर 2019 में मोदी जी 303 सीट लेकर के आ गए। तो ऐसा कुछ करिश्मा, वो बालाकोट टाइप कुछ करिश्मा ऐसा कुछ कर देंगे मोदी जी फिर क्या? वो चाहे अब इस बार जितना करिश्मा कर रहे हैं, कितने को मरवा दें, क्योंकि उनके लिए लाशों के से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि उनका जो स्टैंड है वो हर जगह बदलता है। पहले उनका स्टैंड आप फिलिस्तीन के इश्यूज को ले लीजिए, जिस पर बड़ी बहस हुई, बहुत सारे पत्रकार हम लोगों से नाराज भी हुए कि हमास का इशू, आज तो प्रधानमंत्री हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन देश कभी नहीं बदलता। ये भारत एक बहुत ताकतवर मुल्क है, सत्ता बदलनी चाहिए, बदलती रही है, लेकिन गलत तरीके से देश को गाइड करना, देश के लोगों के साथ धोखा करना, ये काम बीजेपी है, उसके लोग ही कर सकते हैं। और भगदड़ मची है, आपने देखा होगा कि पिछले सालों में बीजेपी के साथ कोई भाग नहीं रहा था, लोग बीजेपी में जा रहे थे। अब आज आपको कोई दिख रहा है कि बीजेपी में जा रहा है? अब आपको दिख रहा है बीजेपी से लोग पलायन कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता पलायन कर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अब सब पलायन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पलायन किया, मध्य प्रदेश में पलायन किया, तेलंगाना में पलायन किया, राजस्थान में पलायन किया। तो अब ये 2000 का ये जो चुनाव है, अभी हमारा दिसंबर में 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, आप देखना बीजेपी के बहुत सारे नेताओं में भगदड़ मचेगी। और मैं आपको और बता रहा हूं, कल हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी मुंबई में थे। कल उन्होंने बताया कि साहब लाइन से लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कई पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में लोग आना चाहते हैं। एप्लीकेशन और बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया और कई आ भी गए ऑलरेडी। तो ये एक बदलाव होने जा रहा है। अभी से 1 हफ्ता और रह गया है सर, 1 हफ्ते के बाद जश्न करेंगे और आपके चैनल पर ही पूरे पटाखे लेके आएंगे हम सभी लोग। फिर आप दिखाइएगा देश को कि सर बाकी सब ले आना, पटाखे मत लाना। मगर मोदी साहब का कहना, मोदी साहब का कहना है कि 3 दिसंबर का रिजल्ट लीक हो चुका है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। बोले कि लीकेज हो चुका है, इसका मतलब कि बेईमानी के सारे रास्ते पहले तय कर रखा है। अरे जनता उनको घुसने नहीं दे रही सर। आप तेलंगाना जाओ, आप मध्य प्रदेश जाओ, आप छत्तीसगढ़ जाओ, भाड़े के लोग भी नहीं मिल रहे हैं सर, भाड़े के लोग नहीं मिल रहे हैं रैलियों में जाने के लिए। हमारे यहाँ हमारे नेता प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी जहाँ जा रहे हैं, हजारों तादाद में, हमारे इमरान प्रताप गढ़ी जहाँ जा रहे हैं, लाखों लोग अपने आप चले आ रहे हैं। लोगों को एक बदलाव दिख रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे लोग जाकर वहां इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो गया है वो वोटरों के बीच जा रहा है, अपनी बातें रख रहा है, देश के साथ क्या हो रहा है वो उसको बता रहा है। और आप उसका रिजल्ट देखेंगे, जिस तरह से साइलेंट तरीके से लोग काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये बात आईबी ने भी मोदी जी को बता दिया है, ये बात उनके लोगों ने इसी हताशा में
वो सभी राज्यों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने कुछ है, जीएसटी, इसके रेट डाल रहे हैं और अभी भी वो राहुल गांधी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया मोदी जी ने राहुल जी की छवि खराब करने के लिए दिया, हजारों करोड़ रुपया, लेकिन राहुल जी के एक यात्रा ने पूरे उनके छवि को सारा उनके सारे प्रोग्राम फेल किए। सेकेंड यात्रा के बाद मोदी जी देश को मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे जब उनकी बाकी की सत्यता ईमानदारी से राहुल जी की सेकेंड रैली में होगी। निजाम साहब, एक सवाल है, मैं चाहूंगा इस पे आप जरा दिल से जवाब दें। ये सवाल रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से जी, क्योंकि अभी अयोध्या की बात निकली, प्रदीप जी ने बात करी, प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है, संस्थापना होने वाली है रामलला की 22 जनवरी को। हम सबके लिए खुशी की खबर है, ऐसी क्या बात है, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए, जितने भी हिंदू मुसलमान बाकी सब जितने लोग हैं, सब 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 एक जमाना था, आपको भी याद होगा, मतलब उत्तर प्रदेश में हर एक कोई जो जाता था, जो मिलता था, एक दूसरे को राम राम कह के पुकारते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जय श्री राम को छोड़ करके हम लोग अगर राम राम दोबारा कहना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी, उनके आसपास जितने लोग हैं, कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, निचले तबके का जो मुसलमान है, वो असल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और बहुत खुश है। पहली बार उत्तर प्रदेश में निचले तबके के मुसलमान को एक तो शिक्षा मिली है, दूसरा काम करने का मौका मिला है, तीसरा जो माफिया सरगना थे उत्तर प्रदेश के, उनसे निजात मिली है। आपके पास क्या रिपोर्ट है सर, बताएं। सर, मैं आपको एक ये योगी आदित्यनाथ जी इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे कि वो मुस्लिम के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा विषय आया, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। दिया हलाल सर्टिफिकेशन का, जी हलाल सर्टिफिकेशन का जो मुद्दा आया है, ये योगी जी को तबाह कर देगा। इनको पता नहीं है कि हलाल प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान के बाहर गल्फ कंट्रीज, जितनी कंट्रीज हैं, उन सारे कंट्रीज में जब तक हलाल का सर्टिफिकेशन नहीं होता, कोई भी माल हिंदुस्तान से परचेज नहीं करता। उसके ऊपर कुछ नहीं लगा रहे सर, वो सर उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहे, वो लगा रहे पाबंदी सिर्फ जो डोमेस्टिक मार्केट में है उस पर। नहीं सर, आप जब बनेगा ही नहीं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का क्या इशू आता है सर? ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको जो लोग गाइड कर रहे हैं वो पागल हैं। उनको ये समझा रहे हैं कि इससे हमारा हिंदू भाई खड़ा हो जाएगा। अरे हिंदू भाई उनके साथ इसमें कभी नहीं खड़ा होगा। उनके सारे बच्चों की नौकरियां उनके हाथ से निकल जाएंगे। पूरा 70 लाख लोग विदेशों से बाहर भेज दिए जाएंगे और यहाँ कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे तुर्की हो, आपका इंडोनेशिया हो, आपका दुबई हो, आपका बहरीन हो, मस्कत हो, सऊदी अरबिया हो, ये सारे लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। सब हिंदुस्तान तबाही के रास्ते पर आएगा। एक पागल की वजह से इतना बड़ा इशू बन जाएगा। इनको उसको पहले समझना चाहिए, समझकर उसे देश के जिम्मेदार लोगों से चर्चा करना चाहिए। आप उनको ये नहीं मालूम कि हलाल क्या है और उनके लोगों को बात क्या करनी है, उनको ये नहीं पता है कि आज 90% कंपनियां हिंदू दोस्तों की है, हिंदू भाइयों की है, जो तमाम हलाल चीजें बनाते हैं। बिस्किट बनाने वाली कौन सी कंपनी हिंदुस्तान में? एक मिनट को छोड़ दीजिए, 13 बड़ी एजेंसियों में से 11 हमारे हिंदू भाइयों की है। क्या बात छोटी सी बात, पता ही नहीं सर। अरे निजाम साहब, छोटी सी बात सुन तो लीजिए। अब ये खबर आ रही है, आज की जो खबर है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो मीट प्रोडक्ट्स पे लागू रहेगा, उससे नहीं हटाया जा रहा। जो बाकी सब्जियों पे, दालों पे, आटे पे जो हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा था दारुल उलूम देवबंद से, उस पे पाबंदी लगाई जा रही है और उसके लिए कमेटी बनेगी सरकार की जो हलाल सर्टिफिकेशन इशू करेगी। ऐसा प्लान है। निजाम साहब, उनको सर मालूम नहीं है। देखिए, मैं हलाल क्योंकि महाराष्ट्र से ही सर्टिफिकेट पूरे देश को इशू होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीयत उलमाए हिंद का एक ब्रांच है जो है हलाल सर्टिफिकेशन देखता है। अब उसके लिए उनके धार्मिक जो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद वो उसको सर्टिफिकेशन करते हैं। वो टाटा को भी करते हैं, रिलायंस को भी करते हैं,
वो जो है अडानी अंबानी के प्रोडक्टों को भी करते हैं, वो जितने भी मतलब इस तरह की चीजें आती हैं जो खाने में इस्तेमाल होती है, उसको वो देखते हैं कि जिस चीज से बने हैं उसका क्या 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 हो सकता है, उस पर वो चर्चा करते हैं। अब रही बात देश के अंदर उसका मुद्दा ही नहीं, क्योंकि देश के अंदर आप देखिए कि जो लोग मांस खाने वाले हैं उनको कौन रोक रहा है जी, उसका सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, आप उनको पूछिए, उनको मालूम ही नहीं है कि देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का सिस्टम, उनको जब ये पता ही नहीं है कि ये देवल नहीं करता, ये जो है जमात उलमाए हिंद जो है वो करती है, उसकी एक डिपार्टमेंट है सेपरेट, और उसमें देश के बहुत सारे संगठनों ने इसको मांगा था विदेशियों से, उन्होंने इसको नहीं दिया परमिशन, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है। दूसरी चीज है कि उसमें तमाम हिंदू कंपनियां 99.9%, अगर आपको इसकी तमाम चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसकी सरकारी मुहैया करा दूंगा। वो मालूम इंडिया में कहीं रिक्वायर ही नहीं मालूम सर, इंडिया में तो ये कहीं रिक्वायर ही नहीं है ना। अब आप सोचिए कि जो हमारे साथी मीट खाते हैं, अगर वो झटके का खाते हैं तो उनको कौन रोक रहा है, और जो जबे किया हुआ मीट खाते तो क्या आप करेंगे? आप सारे कसाईयों से कह देंगे कि आप मीट जो है जबे मत करो, आप सीधा मुंडी काट के लेके आ जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकेंगे। आप इलीगल स्लॉटरिंग बंद कर सकते हैं, आप विदाउट कहने का मतलब ये हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसा कि निजाम साहब ने बताया, प्रदीप जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हलाल सर्टिफिकेशन डोमेस्टिकली हैज नो मीनिंग एट ऑल, क्योंकि आपको मालूम है कौन से कसाई के पास जाना है, अरे किधर जाना है, आप अपना मीट कहां से लेकर के आते हैं आपको मालूम है ना, कुरैशी की दुकान पे जाना है कि सिंह साहब की दुकान पे जाना है, आपको मालूम है। यस, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझ लें आप, अभी मैं आपको मुंबई का हवाला देता हूं, जो स्लॉटरिंग हाउस है मुंबई का जी, सरकार जो है बीएमसी में उनको पैसा देती है उसको मेंटेन कर रहे हैं। जिस बैल या भैंस या बकरे का को जबिया करते हैं उसका सर्टिफिकेशन बीएमसी इशू करते हैं। बीएमसी किसी मुसलमान की तो नहीं है ना सर, वो तो ये देखती है कि जो जानवर आपको परोसा जाएगा खाने में वो स्वस्थ है कि नहीं, ये काम देखती है। अरे ये मूर्ख है, इनको ये मालूम है कि अरहर की दाल जो किसान पैदा करता है उस पर सर्टिफिकेशन नहीं होता सर, चावल पर सर्टिफिकेशन नहीं होता, हलाल का बोर्ड नहीं लगता, दाल पर नहीं लगता। जहां मिक्स होने का कोई डर है, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्रोडक्ट पैदा करके उसमें मिक्सिंग करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा आएगा ना सर। अब अगर आप जो है अनाज पैदा कर रहे हैं, खेत में किसान पैदा कर रहा है, तो उसको कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? एक उदाहरण नहीं दे सकते देश में कि किसी, अब सब्जी पैदा होती है, आप उसका कहां से लेके आएंगे? लेकिन सब्जी में अगर कोई चीज आप प्रोडक्ट तैयार करके बाहर भेज रहे हैं और उन कंट्रीज को भेज रहे हैं, तो वो कंट्री ये पूछती है कि इसमें जो चीजें आपने मिलाई है वो जायज है क्या, क्योंकि उनके यहाँ इस्लामिक लॉ है। अब उनके यहाँ तो आप इस्लामिक लॉ नहीं बदल देंगे ना सर। So which means there should not be, no, the point is very simple sir, एक निजाम साहब, बड़ी सरल भाषा में मैं बता दूं कि उसमें there should not be any substance related to pork etc etc और anything, और कोई ऐसी चीज जो इस्लाम में वर्जित है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में, सिंपल बात है, that's it, that's it. So I think that's a very fair and a very fair assessment. So perhaps the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, has been advised wrongly. Perhaps that is the view of Nizamuddin Ring. उनको चाहिए था सर, मेरा भी एक एडवाइस है, उनको चाहिए था कि वो, उनका दावा है कि मैं प्रदेश को बहुत डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बहुत विकास कर रहा हूँ, तो उनको चाहिए कि जो समाज, क्योंकि आज इस देश में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो 99% कंपनियां हमारे हिंदू दोस्तों की है जी, 1 से 2% मुसलमानों की कंपनियां हैं, 2% भी नहीं है, 2% भी नहीं है, 1%। यस सर, तो उनको चाहिए कि सबको बुलाकर नफरत फैलाने से बेहतर है कि उससे बात करें, उनको समझाएं कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, वो खुद समझें, उसके बाद वो इसका फैसला करें ना सर। हाँ, उसके पहले कोई जीआर इशू नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यस निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, वंडरफुल, एंड वील वेट फॉर December 3rd टू सी हाउ द रिजल्ट्स आर, किस प्रकार के रिजल्ट आए हैं वो 3 दिसंबर को मालूम हो जाएगा। फिलहाल निजामुद्दीन रईन साहब, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर। Well, that's a very good point actually, because rightfully speaking, all those people who are exporting whatever products are to be used in Islamic countries,
they do require that halal certification. Now, if you are not happy with the Jamiyat Ulema-e-Hind, then perhaps the government should make its own body. You know, it's to more give about the halal process. certification. He believes that the process is being sidetracked, and without going through the process कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज है which is indicated. Yes. If you are fraudulently just putting the halal stamp without going through the process, he is taking action against them too. So it's a But huge. is that really an issue? I mean, I don't know whether it's an issue, but anyway, let's. शत प्रतिशत यूपी. Yes, शत प्रतिशत यूपी. यार, I'm not sure, but anyway, let's ask संजय ठाकुर. संजय ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के, बड़े दिनों के बाद जुड़ रहे हैं हमारे साथ. संजय ठाकुर साहब नमस्कार. क्या बात है बजाज साहब, सेम ओल्ड हैंडसम लुक. थैंक यू सो मच. चर्चा का विषय है पूरे देश में. थैंक यू वेरी मच संजय ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सेम ओल्ड हैंडसम लुक बोल दिया. कोई इस उम्र में मुझे हैंडसम बोले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. आप एवरग्रीन आदमी हैं बजाज साहब. जी, इसीलिए आज ग्रीन कोट पहन के आया हूँ और ग्रीन शर्ट भी पहन रखी है. जी, लेकिन संजय ठाकुर साहब नाराज थे आप हमसे क्या? आप आए नहीं, मतलब इतने दिनों के लिए? नहीं, मुझे 1-2-3 बार बोला गया बजाज साहब, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था जी, और ऐसी सिचुएशन में था कि वहाँ वाईफाई का इशू होता, नहीं कर सकता था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सका. सर पहले तो एक चीज से मैं शुरू करूंगा. ये कल भी मैंने बात कही थी और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया, और उसके बाद फिर अपने पॉलिटिकल मुद्दे पे आएंगे. जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, क्रिकेट टीम के ग्रीन रूम में गए वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, और सबकी हौसला अफजाई की, सब लोगों को शाबाशी दी कि यार 10 मैच तुम जीत के आए हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है. चलिए तुम एक मैच तुम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, हर कोई तुमको देख रहा है. और कैसे लोगों को गले लगाया उन्होंने. रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, रविंद्र जडेजा को, मोहम्मद शामी को, अपना क्या नाम है उसका, जसप्रीत बुमराह को. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. क्या कहेंगे इसके बारे में आप सर, बताएं सुनील. देखिए, देश का मुखिया बजाज साहब ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, ये तो गेम है, गेम में जीत और हार दो ही चीज होती है, तीसरी तो क्या चीज होनी है जी. अब लगातार जीतते रहे, कोई एक खराब दिन, कोई एक खराब वक्त जिसमें कैरीड अवे हो गए, रोहित शर्मा नहीं जरूरत थी मार दिए, नहीं आउट होते, अकेले रह जाते तो वही 200 रन बनाते. तो गेम है, जीत हार लगी रहती है. लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस वर्ल्ड कप की गेम के हारने के बाद जिस तरह की मीम, जिस तरह की अपोजिशन पार्टियों की मीडिया टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह की हरकतें की, दैट इज बैड, दैट इज बैड. शर्म भी आती है. लेकिन हमारे मुखिया को देख के खुशी भी होती है कि सबको मिले, प्यार से मिले, सबको दिल्ली आने का न्योता दिया, वादा किया दिल्ली आने पे बैठूंगा. और जिस तरह से मोहम्मद शमी को गले लगा के उन्होंने जो उनकी शाबाशी दी है, उनको आशीर्वाद दिया है, उसको देख के लगता है कि ये जो विरोधी पार्टियां छोटे छोटे अनचाहे मुद्दों पे अभी हलाल और हलाला पे चिल्ला रही, उनको चिल्लाना चाहिए, या ऐसे मुखिया के किसी नियत पे शक करना चाहिए. क्या भारतीय जनता पार्टी ने, या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की, केंद्र सरकार की किसी भी स्कीम में किसी हमारे मुसलमान भाई बहन को किसी भी लाभ का, योजना का कम लाभ दिया है क्या? अरे सर बात तो छोड़िए ना ठाकुर साहब, मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए सहसपुर में, अमरोहा में, इसकी अनाउंसमेंट कर दी है योगी आदित्यनाथ जी ने. क्या बात कर रहे हैं सर, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? अब बताइए, इससे बड़ी कितनी परीक्षा देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नियत और अपने नीतियों के बारे में? यही तो है, ये कांग्रेस के लोग, नेवर बीन डन बिफोर, आज तक कभी नहीं हुआ पहले. ये कांग्रेस के लोगों को जरा भी शर्म आती नहीं है. ये लोग जस्ट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करना है इसलिए कुछ भी बोलते हैं, और वो बोल के अपना ही नुकसान करते हैं बजाज साहब जी. वो इसरो में हम लोग देखा था कि जिस प्रकार से मोदी साहब जाकर उस हार को उन्होंने गले लगा लिया, बोले कि अगर कोई हारता तो मैं जिम्मेदार हूं. दैट इज, इसरो में भी हमने देखा जो शिवन जी को गले लगाए थे, यहीं पर रोहित शर्मा और पूरे टीम को जिस प्रकार से, तो उन्होंने एक लीडरशिप का एक स्टैंड बना दिया है, अपवर्ड स्टैंड, जो कि हर हार के लिए मैं जवाबदार हूं, आप नहीं, आप बिंदास अपना काम करते रहो. एक मैसेज अच्छा गया है ठाकुर साहब पूरे देश में. जरूरत यही है.
नाम्बियार साहब, इस वक्त देश की जरूरत यही है कि जब देश विरोधी ताकतें, देश के अंदर की विरोधी ताकतें देश को गुमराह करके देश को गलत गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रही हो, उस समय पे अगर ऐसा लीडर ना हो देश के साथ तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप इस बात की कल्पना करिए। आप कल्पना करिए कि वो लोग जो इस तरह के बयान देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, वो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को कितना इनसिक्योर करते हैं। और दूसरी तरफ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का लीडर जो अपने लोगों को गले लगाता है और मोहम्मद और माजिद और मनोज में कोई फर्क नहीं करता है, ऐसे नेता के लिए भी अगर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि इनकी बुद्धि पे स्वयं माँ सरस्वती नाराज हो गई हैं और विराजमान हो गया है इनका दुर्दिन। इन लोगों का नुकसान होते ही जाना है, इनको समाप्ति की तरफ बढ़ना है, तो इस तरह की हरकतें करते कांग्रेस क्या इसीलिए प्रदीप जी बिल्कुल क्या इसीलिए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को पनवती मोदी कहा, जिसके ऊपर अब आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं? राजस्थान की एक मीटिंग में कहा है ना उन्होंने, राहुल गांधी जी ने। ऐसा है ना बजाज साहब, असल में उनका हम इग्नोर कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ रहा है कि मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा। इनकी आदत पड़ गई है, इस तरह की बदतमीजियां करते हैं और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये माफी मांग लेते हैं और हमारी कोर्टें बार बार इनको माफ कर देती हैं। तो हम लगातार इनकी इस तरह की हरकतों को देश के सामने और देश के न्याय तंत्र के सामने रखते रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी दिन तो ऐसा होगा जिस दिन इनकी गलती 101 हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तू तो मेरा भाई हो, भाई तुम मेरे भाई हो, 100 गलतियां तुमको माफ हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की 100 गलतियों को माफ कर देंगे। तो राहुल गांधी शिशुपाल है, कहने का मतलब ये हुआ। अब हरकतें शिशुपाल जैसी कर रहे हैं तो फिर क्या कहें हम लोग, हरकतें तो उनकी शिशुपाल जैसी ही है। कांग्रेस का कहना है जननायक राहुल गांधी। कांग्रेस राहुल गांधी जी को कह रहे कि जननायक, हमारा जननायक का परफॉर्मेंस 5 स्टेट में ऐसे होने वाला है कि नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी आर स्कैर्ड ऑफ हिम। मोदी जी एंड द बीजेपी इज स्कैर्ड ऑफ राहुल गांधी। जननायक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, 5 स्टेट में विक्ट्री होने वाले है कांग्रेस के। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीछे छोड़ दिया। एसोसिएटेड जर्नल्स जो कंपनी है तो उस पे रेड लगा के करीबन 750 करोड़ के प्रॉपर्टी अटैच किए उनके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के। तो एजेएल, तो ये कांग्रेस का कहना है कि जननायक से डरने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ठाकुर साहब। नाउ हाउ डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट जननायक? ईश्वर करे कि कांग्रेस को बार बार इसी तरह का जननायक मिलता रहे जो अपने जीवन के जितने चुनाव हुए हैं उसके 95% चुनाव हार जाता है। कांग्रेस को ऐसे ही जननायक की आवश्यकता है, तो उसमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, हम और आप क्या कर सकते हैं। रही बात इनके यंग इंडिया और एजेएल की बातें, तो भाई आप भ्रष्टाचार करोगे तो नरेंद्र मोदी जी छोड़ेंगे नहीं किसी को। समय समय पे सबका इलाज होता रहेगा। आपने 68 साल लगातार राज करके भ्रष्टाचार किया है, तो उस भ्रष्टाचार का इलाज करने में अगर 68, 78 और 98 महीने लग रहे हैं तो इस तरह का रोना रोए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा जननायक हम लोग तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा ही जननायक देते जाइए कांग्रेस को, जो एक दिन कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के समाप्त कर देगी। ये जो इन लोगों के पास पैसे हैं, जो आप बता रहे हो 700-800 करोड़ की संपत्तियों को 752 करोड़ का फिगर दिया है ईडी। हाँ, तो ये हजारों करोड़ क्या इटली से लेके आए थे बजाज साहब? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो हजारों करोड़ रुपया है, ये क्या इटली से लेके आए थे? और इटली से लेके नहीं आए थे जब ये लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास 5 करोड़ रुपए के ऊपर रुपया नहीं है। ये चाइना से चंदा लेते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेते हैं, वहां से कांग्रेस को ये ट्रांसफर करते हैं, एजीएल से उसको यंगिस्तान में लेके जाते हैं, यंग इंडिया में लेके जाते हैं। यंग इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास चली जाती है। तो ये हजारों करोड़ रुपया जो देश की संपत्ति है, भारत देश से कमाया है, गलत तरीके से कमाया है, तो भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां उसको अटैच करेंगी। इटली से तो लेके नहीं आए थे ना भाई साहब।
आप जी। तो बड़े निष्पक्ष हैं, आप लोग तो भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, आप लोगों ने कभी कोई बिजनेस भी नहीं किया है, आपने अपने किसी घोषणा पत्र में किसी बिजनेस का जिक्र भी नहीं किया है, तो ये सारे पैसे आपने लाए कहां से हैं? और अगर गलत तरीके से कमाए हैं तो उसको तो आपको देश को देना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी यही तो कहते हैं कि सबका हिसाब करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक रुपया जो देश का है वो वसूल के रहूंगा। तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पैसे वसूल रही है और इनको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो दर्द होगा, दर्द होगा तो इसी तरह की उल जलूल बातें करेंगे। तो संजय ठाकुर साहब, अब आप ये बताएं कि अब जो 5 स्टेट की इलेक्शन हो रही है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है, अब आपके मुंह से भी सुन लेते हैं सर, 5 स्टेट में से बीजेपी कितने जीत रही है आपके मुताबिक व्यक्तिगत तौर पे? बजाज साहब जी, पहली बात तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ बोलने के लिए ऑथराइज नहीं। कोई बात नहीं सर, हमने ऑथराइज किया मेरा आपको। अपना व्यक्तिगत सर हमने ऑथराइज किया आपको इस चैनल पे। वी वांट टू लिसन टू योर पर्सनल व्यूज। मेरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और इस देश की गरीब जनता की सेवा के लिए समर्पित है। लेकिन मैंने चुनाव पोलिंग हो जाने के पहले ही आपके इसी चैनल पे आपसे कहा था बजाज साहब कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इन राज्यों में जीत हासिल कर रही है और ये बहुत जल्दी है हम लोगों के सामने आ जाने वाला है। मैं अपनी बातों से मुकर नहीं रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। और यहाँ पर एक और चीज, सॉरी एक छोटी सी बात जो आपने बात करी, सॉरी मैं आपको जरा पीछे लेके जा रहा हूँ, वो बात जरा रह गई थी, फिर मैं नहीं तो भूल जाऊंगा पूछना आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कहा जिस प्रकार वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑपोजिशन के लोगों ने कमेंट्स दिए, उल्टी सीधी चीजें बोली, मीम्स बनाए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। संजय ठाकुर साहब आप इस पर जरा प्लीज कमेंट करें। इसके ऊपर मेरी लड़ाई रहती है हर एक से कि आप लोग मतलब ये चाहते हैं कि भले भारत हार जाए, नरेंद्र मोदी को कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब ये कैसी मंशा है यार, मतलब किस किस्म के लोग हैं ये? संजय ठाकुर साहब। बजाज साहब, चूंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री राजनीति में है, राजनीति से आके प्रधानमंत्री बने हैं देश का, तो राहुल गांधी की पनौती की कमेंट को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक तरफ वो नेतृत्व है जो अपने जीवन के जितने चुनाव लड़ता है वो सारे अपने चुनाव जीतने के साथ साथ पूरे अपनी पार्टी के चुनावों को, हारते हुए चुनावों को खींच के जीत के, हार के मुंह से खींच के जीत में परिवर्तित कर देता है। एक तरफ वो नेतृत्व है जिसको राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी जीते हुए चुनावों को हार जाते हैं और बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते हैं दूसरे प्रदेशों में, वो जो है जननायक हो गए। ये दो मुही बात भारत देश की जनता भी समझती है, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी की बातों पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं। ठाकुर साहब, अमित शाह जी हर मंच पे आप देखोगे सबको याद दिलाता है कि 22 जनवरी 2024 और मुहूर्त भी बोलते हैं कि 12:22 पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मुहूर्त के साथ, डेट के साथ। और यह भी याद दिलाता है कि भूमि पूजन भी मोदी साहब ने किया था 5 अगस्त 2019। अमित शाह जी हर मंच पे ये बोल रहा है और आगे जाके ये भी बोल रहा है कि 550 साल के बाद ये शुभ अवसर आ रहा है, बहुत शुभ अवसर। और कांग्रेस ने 70 साल में हमेशा इसका विरोध किया है। राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण का हमेशा 70 साल से कांग्रेस विरोध कर रहा है। इसमें थोड़ा हाईलाइट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये देश जानता है कि कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने तो भगवान राम मंदिर के विषयों पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की अलग अलग अदालतों में जितने भी विरोध कर सकते थे, कांग्रेस ने विरोध किया ही है। लेकिन ये सत्य भी है कि 550 साल के बाद ये शुभ अवसर आया जब अपनी ही धरती पे, जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पे वो विराजमान हो रहे हैं। और देश के आदरणीय गृह मंत्री जो बार बार इस बात को कह रहे हैं, उसके पीछे जो दूसरी बात है ना बजाज साहब, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है,
इसलिए ये काम इतनी आसानी से हो पा रहा है। इस देश की विरोधी पार्टियां इसलिए बौखलाई हुई हैं कि इनको ये समझ गया है कि इस देश के बहुतेरे मुसलमानों का समर्थन भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में मिल गया है और इसीलिए सौहार्द और भाईचारे का माहौल बना हुआ है। इसीलिए इतना बड़ा काम होते हुए भी इस देश के मुसलमानों ने भी तहे दिल से इस कार्यक्रम का स्वागत किया है और कहीं पे भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाई है। इसी कारण इस देश का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और इसी तरह से ये और ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए बहुत बुरी तरह से अपीजमेंट कर रहे हैं ताकि इस देश का मुसलमान इनकी तरफ उन्मुख हो। ये डरे हुए कि अब क्या होगा, हिंदू तो हिंदू, अब इस देश का मुसलमान भी नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखने लगा है और नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता पे, नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक प्रणाली में विश्वास दिखा रहा है। मोदी और योगी मिलके इस देश को विश्वास जताने में कामयाब हो गए हैं कि इस देश का नेतृत्व, इस देश की सरकार इस देश के लोगों के लिए है, किसी देश के हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं। इसीलिए ये लोग बौखला के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसी बात को बार बार आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश के को बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी, जननायक कांग्रेस का आगे जाकर कहता है कि जननायक राहुल गांधी जी हर मन से यही बोल रहे हैं कि आप जब पेट्रोल, लोगों से संबोधित करते हो, आप जब पेट्रोल खरीदते हो तो बिल जब भरते हो तो आधा पैसा अडानी जी के पास जाते हैं। आप जब बिजली के बिल भरते हो, राहुल गांधी जी का कहना है, आप बिजली के बिल भरते हो आधा पैसा अडानी जी के पास जाता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी को कंटिन्यूसली उन्होंने एक ही मंच पर लेके लोगों को बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि अडानी जी, अडानी जी, अडानी जी। जैसे 20,000 करोड़ के पहले आरोप लगाए थे, फिर बोले कोयला आपने पूरा उनको दे दिया 12,000 करोड़, तो क्या ये इंपैक्ट पड़ेगा ठाकुर साहब? नहीं, बिल्कुल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि देश के लोग जानते हैं कि जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में जो स्टेट गवर्नमेंट के सबसे बड़े बड़े टेंडर हैं ये अडानी को मिले हैं और वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिए हैं, वो कांग्रेस शासित प्रदेशों ने दिए हैं। तो इनकी इन दो मुहिम बातों पे विश्वास कौन करेगा? और अगर देश में कोई कॉरपोरेट घराना है जो देश के इतने विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो जो काम करेगा, जो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको जो प्रॉफिट होगा, उसके प्रॉफिट पे सरकार कैसे रोक लगा सकती है? और अगर इतने बड़े ये अडानी विरोधी हैं तो इन्होंने क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के अडानी के सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? इन्होंने क्यों नहीं मध्य प्रदेश और इन्होंने क्यों नहीं राजस्थान में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अडानी के, उसको क्यों नहीं कैंसिल कर दिया इन्होंने? और इस देश पे 68 साल तक राज्य इन्होंने किया था, तो जो फायदा टाटा, बिरला और जो फायदा रिलायंस के, अंबानी की कंपनियों को होता था, वो कंपनियों का फायदा क्या ये अपनी जेब में लेके जाते थे क्या? अगर ऐसा है तो ये बताएं कि 68 साल तक हमने अंबानी का पैसा, टाटा का, बिरला का पैसा, प्रॉफिट हमने अपनी जेब में रखा था, वही पैसे से हमने प्रॉपर्टी बनाई है जो अटैच हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये आरोप लगा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो ये किस तरह से अडानी को और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का कुकर्म कर सकते हैं? इस देश की जनता, इस देश की नौजवान पीढ़ी इस आधुनिक युग में सबके हाथ में इंटरनेट पे मोबाइल है, 5G 6G चल रहा है और इस देश का एक एक नौजवान, बुजुर्ग, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि राहुल गांधी एक नंबर के झूठे इंसान हैं। ये तो शराफत है, ये कहिए शराफत है नरेंद्र मोदी जी की कि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठों के भी सरदार यही हैं। ठाकुर साहब, एक बात तो उन्होंने कही कि मूर्खों के सरदार राहुल गांधी हैं, और जो मूर्खों का सरदार है ही वो झूठ तो बोलेगा ही, तो उसके बारे में और क्या कहना? ठाकुर साहब, जननायक राहुल गांधी जी आगे आरोप लगाते हैं कि आज सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। सबसे सस्ता सिलेंडर गैस का राजस्थान में मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, वुमन हेड उनको 10,000 रुपया हर साल मिलता है। गोबर हम लोग खरीद रहे हैं 2 रुपये पर किलो। स्टूडेंट्स को हम लोग लैपटॉप दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सब सुविधा राजस्थान में किया है। और अगर बीजेपी को आप चुनते हो, बीजेपी आकर ये पूरे स्कीम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिकॉज बीजेपी इज अगेंस्ट ये पॉपुलर स्कीम्स।
तो यू थिंक एक कैंपेन चल पाएगा जिस प्रकार से जननायक राहुल गांधी जी कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी जी खुद को जननायक कर रहे हैं, आप क्यों 25 बार प्रदीप जी उनको जननायक कर रहे हो? जननायक नहीं, मूर्खों के सरदार है वो, आप जननायक जननायक कहे जा रहे हो। सुनो तो ये जो आपको एग्रीवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो गुस्से में और भी बोलेंगे। अच्छा आप कहोगे, अरे एक बार तो कह दो कि हम मूर्खों के सरदार भी सही बात है, ये तो हम ही भरोगे कि नहीं भरोगे? अरे कौन कहेगा इनको, बताइए। इनको इतनी अगर अक्ल होती, अगर इनके अंदर इतनी समझ होती, कागज पे कही गई चीजों का इनको ये पता ही नहीं है कि सारी बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की से। ये तो वो झूठे लोग हैं प्रदीप नांगियार साहब, जिस प्रदेश में हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसी प्रदेश में जब कोविड जैसी महामारी आपदा आई तो नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि रेहड़ी पटरी और रोज काम करके, डेली काम करके पैसा कमाने वाला वो जो रोजमर्रा मजदूर है, उसके पास काम बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, खाने के लिए पैसा नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने अनाउंस किया और प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज स्टेट गवर्नमेंट को भेजना शुरू किया। तो यही की महाराष्ट्र की कांग्रेस और शिवसेना की सरकार, जो राहुल गांधी जिसके मुखिया के सरपरस्त दादाजी हैं, उन लोगों ने कहा नहीं, आप लोगों को पहले जो राशन की दुकानों से पैसा देके अनाज खरीदोगे, उसके बाद पीडीएफ के स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने जो अनाज भेजा है वो मिलेगा। अरे जब उसके पास पैसा ही होता तो उसको मुफ्त में देने की जरूरत क्यों होती? तो मूर्खों के सरदार से ये पूछो कि तुमको पता नहीं था, या मूर्खों के सरदार जब तुम एक बार एटीएम में जाके 3000 रुपया निकाल लिए थे, तब से आज तक उसी 3000 रुपए से तुम्हारा खर्चा चल रहा है मूर्खों के सरदार। उसके बाद तो तुम कभी एटीएम नहीं गए यार, क्यों बेवकूफ बनाते हो लोगों को? इस देश की जनता सब समझती है और राहुल गांधी की तो कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। राहुल गांधी को कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं। और अंदरूनी बात यह है प्रदीप नांगियार साहब कि कांग्रेस के नेता ही दबे तौर पे बोलते हैं कि यार इसको हटाओ जल्दी, ये पनौती हटेगा नहीं तो हम लोग ऐसे ही मरे रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी साफ कर देंगे, जीवन में फिर कभी आ नहीं पाएंगे। पनौती हटाओ, प्रियंका लाओ। ये अलग बात है कि प्रियंका आने के बाद उनको पता चलेगा भी इस पनौती का क्या करें। संजय ठाकुर साहब, दूसरी चीज ये है, बड़ी अच्छी खबर है कि बाय दिसंबर दिस ईयर और बाय जनवरी 2024 India will be a $4 trillion economy, $4 trillion economy, and by the end of 2024 or the beginning of 2025, India will overtake Germany as the 4th largest economy in the world. The 4th largest economy in the world, and we will overtake Japan as the 3rd largest economy in the world by 2026 or 2027. Now that's amazing. लेकिन उसमें एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि दिस इज एट द मोमेंट जॉबलेस ग्रोथ। तो ये जॉब क्रिएशन कब होगी टू मैच द ग्रोथ रेट? वो भी दोनों चीजें साथ साथ में चले तो जाके असल में प्रोग्रेस होगी भारत में। संजय ठाकुर साहब। राज साहब देखिए, मैं अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे भी एक डिबेट में आपसे सिक्योरिटी के मुद्दे पे जब डिबेट हो रही थी तो हमने ये कहा था कि देश की अंदरूनी ताकतों के अलावा इंटरनेशनल ताकतें भी, वो ताकतें जो हमसे एक नंबर आगे हैं, वो सब इस फिराक में लगी होंगी कि ये कब हमको ओवरटेक करके आगे चले जाएगा। वो मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेज हैं जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और सबोटाइज करने के लिए काम करेंगी। लेकिन उसी डिबेट में मैंने आपसे ये भी कहा था बजाज साहब कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश को हम सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में से इसकी डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के जरिए, एमएसएमई मंत्रालय के जरिए इन चीजों को बहुत ही डाइवर्सिफाई करके ज्यादा से ज्यादा हमारी यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आप खुद भी एम्प्लॉयड हो जाओ और 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दो। इस तरह की प्लानिंग को जब नरेंद्र मोदी जी ने लिया और कैंपेन शुरू किया तो यही कांग्रेस के और विपक्ष के लोग पकोड़ा तलवाएंगे और भाजी बनवाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। अगर देश ने कोविड की महामारी नहीं झेली होती, आप याद करिए नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा था कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, और अगर हमने इस महामारी को नहीं झेला होता तो हम आज की डेट में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके होते। और ये दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं
कि बाय द एंड ऑफ 2027 हम पूरी दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होंगे, हम जर्मनी को और जापान को पीछे छोड़ चुके होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि विपक्ष की और कांग्रेस की और मूर्खों के सरदार की किसी कैंपेन में मत आइए और नरेंद्र मोदी की तरह इसी तरह से आप लोग गंभीर रूप से खड़े रहिए और 2027 के अंत तक भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से ही नहीं, सबसे बड़ी सामरिक ताकत, सबसे बड़ी स्पेस ताकत और दुनिया को दिशा देने वाली शायद नंबर 1 पहली ताकत हो जाएगी। दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें भारत पहले नंबर की ताकत हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हम सभी भारतीय लोगों को हिंदू मुसलमान जाति बात छोड़ के, धर्म और मत मजहब को छोड़ के एक साथ इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहना होगा। हम सब इस लड़ाई को लड़कर दुनिया की सबसे ताकतवर देशों में से एक देश होंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को। और आपके माध्यम से, चूंकि आप भी राष्ट्रवादी आदमी हैं, आप लोग भी बात राष्ट्रवाद की करते हैं, इसीलिए मैं इस बात पे जोर देके कह रहा हूं कि इस बात को बार बार कहा जाए लोगों से कि हम सबको मत मजहब को भुलाकर 68 साल आप लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है, 15 साल आंख बंद करके नरेंद्र मोदी की गलतियों को गिनाए बिना आप लोग खड़े रहिए। अगर दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों में आप ना हो तो आप कभी मत लाइएगा नरेंद्र मोदी को। इस बात के साथ कहते हैं कि खड़े रहिए, प्रदेशों में भी नरेंद्र मोदी को जिताइए, ताकि जो आर्थिक विकास की रफ्तार है वो जिस तरह से केंद्र सरकार की स्कीमें हैं उनको भली भांति प्रदेशों में भी लागू करके हम अपनी 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी को जो कैप्चर करना चाहते हैं उसमें हमको मदद मिलेगी और हम ये काम कर लेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। हमारा नेता ऐसा है, जब 2014 में आता है और 2024 की चुनाव में, 19 की चुनाव में जाने के पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संदेश देता है और जब अचीवमेंट के करीब है तब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2027 तक निश्चित रूप से हम जापान को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी मैन पावर ज्यादा है, हमारी मसल पावर ज्यादा है, हमारे पास यंग इंडिया की एनर्जी ज्यादा है और हम जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे के हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसएमई की थ्रू से जिस तरह से हम अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं घरेलू उत्पाद को, उसमें हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार होंगे। थैंक यू सो मच सर। संजय ठाकुर साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप आते रहें चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम हियर, माय प्लेजर टू। और 3 दिसंबर को वी विल नो एग्जैक्टली वेयर एवरीबडी स्टैंड्स। बजाज साहब 3 दिसंबर को डिमांड करके आप मुझे बुलाइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा है हम लोग जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। दुरुस्त बात आपने कहा क्योंकि है हमारे और बहुत पहले से कहा है, हमारे अभी से नहीं कहा है, बहुत पहले से। पार्टी नहीं भेजेगी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उस दिन मेरे लिए डिमांड कीजिएगा। ठाकुर साहब, आपने जो इतना देर के बाद हमारे पास पूरे कसर आज निकाल दिए, इतना तेज और इतना ऊर्जा से आपने बात किया, तो जबरदस्त था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। Well, that was nice. Rather very passionate, of course. बिल्कुल सर। But rather nice. But Pradeep ji, what I said was that, when are you going to have job-oriented growth? When are you going to create jobs? Yes. This is jobless growth. Exactly. And is this India becoming the 5th largest economy, very soon to be the 4th largest economy, very soon to be the 3rd largest economy? Is it going to help the people who are right there at the bottom of the ladder? You need to change the I standard don't of know. living. So the गरीब से गरीब लोगों के बाद जब, when 2014 when Narendra Modi ji came in, he talked about the most poorest of poor. No, let's ask Mr. Milind Ranade. Yes. Milind Ranade Saab is a union leader, BMC union leader. Years and years of service. Conservancy workers की यूनियन के लीडर हैं और जनाब वो जो उन्होंने काम किया है हम लोगों ने तो देखा है साहब, जो और कोई काम नहीं कर सकता वो मिलिंद रानडे साहब ने किया है और आज तक कर रहे हैं। एंड जस्ट फॉर दैट अलोन ही डिजर्व्स all the support he can get and all our appreciation, so which is why I would like to go straight across to him. Ranade Sahab, namaskar. नमस्कार। How are you, sir? I am fine, thank you. Thank you बताइए। Thank you very much, sir, for joining us. Sir, पिछली मर्तबा जब हम आपके साथ थे, you had raised some very disturbing issues. बहुत disturbing issues थे। आपने ये कहा था कि किस प्रकार कंजर्वेंसी वर्कर्स का शोषण हो रहा है,
किस प्रकार उनको ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर और जो मेन कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी है, उन दोनों के बीच में व्हाट इज द एग्रीमेंट, वी डोंट नो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर ओन लीगल स्टेटस कैन नॉट बी डिफाइंड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर सफरिंग विद रिगार्ड टू medical insurance, with regard to medical assistance, with regard to accident insurance and everything else. तो रानडे साहब, अभी क्या स्थिति बदली है कंजर्वेंसी वर्कर्स की, बीएमसी के? प्लीज जरा दर्शकों को बताएं सर हमारे. सर, can you hear me, sir? Yeah, now. Sir, has the situation changed for conservancy workers in since fact, we met last? No, not at all. In fact, it has worsened. See, in 2017, we got an order from Honorable Supreme Court, and 2,700 workers who were working earlier as contract laborers or who were shown as contract laborers, they got permanency. And by 2018, around 1,600 workers were given appointment letters as permanent employees of Municipal Corporation of Mumbai. And now in 2023, BMC now says that we misread the order and we gave permanency by mistake. Now BMC says BMC was supposed to give them only monetary benefit and not permanency. And now they have filed an affidavit in Supreme Court saying after 6 years that we have made a mistake and we want to withdraw the permanency letters given to not one or two but 1,600 workers. See, BMC has got its own legal department where hundreds of lawyers are employees of the BMC. BMC headed by IS officer who is the commissioner. Then there are 4 additional municipal commissioners who are IS officers. The circular of granting permanency was signed by head of the department of HR, by head of the department of accounts, by head of the department of some other departments. And now BMC says that we want to withdraw it. How isn't that terrible? I find it hard to believe. Can it Shocking. In fact, the Supreme Court should come down heavily on these BMC. How can you do such a thing? Awful. Atrocious. So that's why on 12th of December we have a contempt of court case in Supreme Court. See, BMC is using public money and spending lavishly on the topmost lawyers to defend their bizarrest arguments. Now, can anyone imagine? Can BMC ever give an appointment letter by misreading the order of the Supreme Court, which is absolutely clear? Absolutely clear. There was a meeting held by the then Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, and the meeting was chaired by Devendra Fadnavis himself, which was attended by the then Municipal Commissioner, Mr. Mehta, Ajoy Mehta. I was one of the participants, Ajoy Mehta, and it was directed that please implement the Supreme Court order as early as possible. And after CM's intervention, and what was intervention? CM didn't give any extra guideline. He said implement the order immediately, and then only we got permanency letters for 1,600 workers. Now these workers have worked during COVID period, Corona period, and at that time they were promised that it was very difficult to travel, it was very dangerous to work under that condition. So they were promised that they will be paid 300 rupees per day as hardship bhatta, hardship allowance. Yes. Yes, sir. Till this day, that allowance has not reached workers. So where has it gone? You have people who have entered into gutter, which we can see in the footage, yes, on your screen. Yes. Yes,
And these workers were promised 300 rupees because it was very difficult for them because buses were not working, trains were not working. It was very difficult to reach, and they were promised 300 rupees per day. Now after 4 years, they have not a single worker has received a single penny. This is the situation. This is how shameless our leaders and our especially IS officers can become. But this is our money, Mr. Milind Ranade. Yes, of this course is it is. our money. Yes. Yes, How of can course they it use is our money? How can they use our money to exploit our people? And these are our people. They're working for us. Yes, of course. They're keeping Yes. our city safe. Once again, let me put this across to everybody. जो मिलिंद रानड़े साहब ने कहा है, अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई शहर को सुरक्षित रखा कोविड के दौरान। आज उन्हीं के खिलाफ बीएमसी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। Shocking, Pradeep ji. The first time, everybody, Ranade Sahab, they applaud the exemplary service during COVID. You and your people had kept Mumbai alive. The Mumbai was impossible tha. The amount of garbage, amount of thing. This was the entire COVID period. Agar the biggest credit should go, it is because of your workers and your association, your people that kept Mumbai alive and saved Mumbai actually. And then you say 300 rupees ka hardship allowance bhi nahi de rahe. So I mean, this is the Supreme Court should take super cognizance of this because this is not only contempt, the worst kind of contempt at all, we can see it. This is criminal. And especially, I'll tell you what, Ranade Sahab, aapne ye bhi dikhaya ki, especially when Modi Sahab, the Prime Minister Narendra Modi ji, he shows that how much respect he has for Safai Kamgar. He on the video, he shows that how he washes the feet of the Safai Kamgars. He, all kinds of things to show that how the Safai Kamgar are very close to him. Are you thinking that, do you think that the Prime Minister's intentions are straight and noble and down, is not filtered down to the lowest level, sir? Ranade sir? According to me, they are meant for the cameras. Okay. That was all nautanki which was done. If your if this hello, Yes, can you hear me? We can hear you, sir. We can hear you. If this program reaches Prime Minister, then I just want to humbly tell him one thing. Why these people who have saved the nation, whom you called Corona Yoddha at that point of time, are not paid 300 rupees which was promised? They never asked. You only declared. Those who have died during that COVID. Now one person from Bhandup ward who died because of Corona. He was admitted to Corona ward. His body was not given like a normal body. His body was packed and was taken directly to the crematorium because he died because of the Corona. Now he should have got 50 lakh compensation. Till this date, he has not received. Why? Because when he was admitted, he died. So they couldn't conduct. They could not conduct Which are required. But the certificate, he was admitted to Corona ward. His body was not given like normal bodies. So when it is the matter of paying money, they said that there is no conclusive evidence. Then why his body was not given? So these people who have worked, they are mistreated. Now, hello. Yeah, we can hear you, sir. Hello. We can hear you. Yeah, so this is the position. No, this is the position. Yes, This is the but- way. but could you also- this is the way these workers are treated. But could you also tell us, Mr. Ranade, have they been given all the safety gear, equipment, etc., that they were promised? Mr. Ranade? Never. Even now? No. During COVID, I will tell you, the contract workers from Andheri K ward were not given PPE kits. PPE kits given later on, and workers were asked to take that PPE kit home, wash it and bring it next day. Good Lord. Now these workers are staying in hutments where there is no 24 hours running tap water. How can they take it to their home? If their kids touch that
PPE kit. What will happen? BMC even refused to give them PPE kits. Why? Because at that time it was costing 1,800 or 900 rupees. So for officers, 1,900 rupees was much bigger than the life of a person whom you called Safai Yodha, Corona Yodha. This is the situation. Why? Pradeep ji. Now, Because all the workers are only Dalits fashion. They Yes. are unorganized. They are not literate. It is very difficult to organize them. They have no legal backing. They can be sacked any time. They can be asked to go home immediately, and there is no legal backing. And Prime Minister has changed all the labor laws, saying that all the labor laws are very stringent. And when these stringent laws, look at the person. You tell me, what are the protective equipments given to such workers? it's awful. I mean, Even today you can come. Even today, let us plan, and I will take you to different areas. Maybe Dharavi, maybe Bhandup, maybe Andheri, where you will find Govandi, Mankur, where you will find people working without basic amenities. Now, for example, workers who are working on trucks are not given drinking water facility. There is no drinking water facility. There is no canteen facility for these workers. Where will they eat? You look at the trolley which they pull for collecting garbage. You will Yes. find one bottle, water bottle tied to that cart. Drinking water tied to a garbage cart. This is their position. Awful. You see, in one of these photographs, you will find people are having their food. Where are they having food? Is it a canteen? Can it be called as eating facility? Where is that? This is the situation, and nobody is bothered. Neither from Prime Minister to BMC corporator, nobody bothers, and all the IAS officers, they are the most dangerous people in this world. They feel that British have given this nation in their hands to guard it. They are not guarding it, they are destroying it. Mr. Chahal is the destroyer. you know, Rana After Sahab, 6 years, in these 6 years, many workers have taken 15 lakh loan from the BMC's own bank to buy a small house somewhere in Ambernath, somewhere in Virar, and now they say that we will take back your permanency letter and of course the job also. Yes. Who will repay that? And this is ridiculous. The Supreme Court has given us the order, and it is ridiculous. Just because they have public money and nobody is there, since now no corporators are there, there is no standing committee, there are no other committees, so the whole money is at their mercy. During G20, all the posters of Prime Minister, perhaps BMC's money was used, perhaps. So what This do you is the way. think the court should do, sir? Court will take its own, and of course, since the matter is sub judice, I don't want to what court should do. Our humble request is we should get justice, yes. The court, yes, we should get justice. Yes, the court should That is- uphold that's its own what- order. Yes, The yes, court, its court own is order. expected to And uphold its own order. Yes, of course. Now BMC has filed an affidavit wherein they have stated that we have given them permanency, but we will not grant them PF, will not grant them gratuity, and will not grant them pension. So they are seeking permission of the Supreme Court to discriminate. To discriminate How against can it happen? Dalits. To discriminate Yes, against they are Dalits. seeking- Let's Yes, address the yes. elephant in the room. These are Dalits. Yes. Most of these officers are upper caste. They don't want to give any benefits to the Dalits who are Safai Karamcharis of the BMC.
Isn't that true, Mr. Ranade? Mr. Ranade, are you there with us? Yeah, I'm still there. So, is this a clear-cut case of caste discrimination? This is a caste and class discrimination. Caste and also, class, because they right. are treated as contract laborers. Yes. Yes, this is double exploitation. No, Pradeep ji. Ranade Sahab, we saw that every day people, your people take the garbage out from localities, from buildings, from areas, and then you take them to the dumping grounds. The dumping grounds are equally worse and equally worse. Now, have you, because you have been studying a lot, I know that you have been very, very informative on all these subjects. Have you given some advice to the government or recommendations to the government through the union that you lead about how the dumping, at least that area, the dumping yards should be, should not be, the way things are done? It's a huge, huge matter, Ranade Sahab. I will tell you, to deny these workers their basic human rights and labor rights, these are called as volunteers. Okay. These are called volunteers and they are not called as workers, because the moment you call them workers, you will have to give them all the labor benefits of labor laws. So to deny that, they are called volunteers. Now you tell me, the person who has entered the gutter, is he doing it voluntarily? And I was also a member of Smoke Affected Residents Forum, where Dr. Sandeep Rane and many others, we were together working against the pollution from Devnar dumping ground. We have given many suggestions. BMC doesn't want to implement any. BMC is not at all serious about anything. They are serious about only one thing, making money for themselves. No, you can just spell out. BMC के जो ठेकेदार है ना, वो क्या बोलते हैं पता है? BMC के कचरा कचरे सब लेने को आना चाहिए. You can spell out आपने क्या recommendation दे दे. Number one, ये workers तो आपने लड़ाई ले सुप्रीम कोर्ट तक लगातार आप लड़ रहे हो, मगर ये एनवायरमेंट पोल्यूशन में भी आप मेंबर थे, तो आपने कौन सा कुछ रिकमेंडेशन किया है? डंपिंग ग्राउंड्स, स्मोकिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, कुछ रिकमेंडेशन बता सकते हो सर? Yeah, there were many recommendations. First of all, monitoring committee होना चाहिए, which we should be allowed to enter the dumping ground, which they are not allowing. They are not allowing anyone to enter the dumping ground. Dumping ground के अंदर जो कचरा है, हीप है, उसको जेसीबी के द्वारा ऊपर से नीचे, क्योंकि जो सेल्फ इग्नाइटिंग मीथेन गैस उसमें प्रोड्यूस होता है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए. देयर वाज वन साइंटिस्ट फ्रॉम BARC who has given many solutions. He has shown in one of the hospitals in Devnar that how to create energy, electricity from garbage in one of the hospitals, Shatabdi Hospital, Govandi. He has shown. But BMC is not interested in such small projects. BMC is interested only 5,000 crore, 10,000 crore projects. Why BMC has not utilized the advice given by the scientist from BARC? They don't want to use it. You ask Sandeep Rane, who was the petitioner. You ask him. BMC has, now for example, now there is pollution. Why BMC is not taking any action against the builders, against the contractors who are building bridges, who are building metros? They will not take any action. They will take action against small officers or small part-time builders. But they are not, have they touched any project where huge pollution is taking place? For example, metro, for example, bridges, for example, work going on at airport? No, they are not at all serious. But this is terrible. In our first case, the then Justice Shri Krishna, he said, he once remarked that not only BMC's garbage stinks, but even papers stink. That is what he said, and he dropped the papers in front of him. Yes.
Quite true. But this is terrible. Mr. Ranade, this is awful. We are in the 21st century. We are in 2023 and we are utilizing methods of the 19th century, and even they had improved in European capitals. What are we doing? Now, don't you think there should be a criminal case against these municipal officers? Yes, of course. Of course, yes. Now, for example, I will tell you, the Labour Department has issued one circular long back saying that each and every payment to the labourer should be made by RTGS or cross-check. Now, thousands of workers are employed in the month of March, April, May to clean underground gutters, which you see right now, Yes. in your frame. These are the workers. Let BMC show how many of these thousands workers are paid by RTGS or cross-check. Each and every one is paid half of the minimum wage or less than minimum wage. Minimum wage is the wage which keeps your bones and soul together. That's a meager wage, and even that is not paid. Even that is not paid. You ask BMC that please show us, last year thousands of workers were employed, so just ask thousands of check payments and see what will happen. And this is happening with the The connivance of minimum everyone. wage. Yes, you were saying with minimum wage. the minimum wage for these workers was decided on 24th February 2015. Now we are 8 another years 2 later. months time will be February 25. Yes. February 24. Yes. It has not been revised. What is the minimum wage? अच्छे sir? दिन आ गए और महंगाई आसमान छू रही है. What is the minimum wage, sir? Minimum wage today, as per that calculation, it is around 740 rupees per day. 740 rupees a day, in which he has to risk Yeah. his life hour by hour. Yes. You don't know whether he's going to be bitten by a snake or a scorpion or some other thing. Yeah. Or he's going to get some Now disease. for example, if you see the bridges in Mumbai, in the middle of there is a left-hand traffic, there is a right-hand traffic, okay? Yes. In the middle, there is a, what you call that, what is it called, divider, Yes. road divider. Yes. And there is a gap between road divider, because road divider is not a continuous thing. There is a gap. That gap you have to clean. Now the person, when cleaning that gaps, is risking his or her life, because if you bend, the traffic from the other side will hit you on the head, the traffic from the back side will hit on your back, on your hip. So from both sides, so we have been telling BMC, give 1 or 2 more extra people to divert the traffic. BMC is not giving it. Yes. Because if you die, you are a Dalit contract laborer. You are born to die. Others are born to live. This is the situation. This is the thinking. This is the thinking. Why? There are no diversions, proper manning. We have taken dead body to BMC headquarters to demand compensation when the accident took place and the person died. We have taken dead body. Why should it happen? There are cases against us for doing this. Sarkari Kamat Adthala, That is dangerous section. 353. Yes. Section 353. And then you don't get bail easily on that. Yes. No, never. Working class, if you are working for working class, you will never ever get bail so easily. Ranade Sahab, we would love to take you up on this, where you said that we can come with you and you will show it to us again. We have done a program with you earlier. We would like to do it again. I hope in the next week or so we can go with you. Can I suggest? Yes, please. Let's have a program or a debate where there is one top level BMC officer and then you call me They won't and come. then let us face. They won't come. You know they won't come. They will not come.
Especially when you they don't hear tell your the- name, they will not come. So don't tell them that I am coming. You call me as Right. a That'd be lovely. But, Last in the minute. meantime, we would love to go with you to Dharavi or to some other place, wherever you decide. We would like to see the actual conditions under which these people work. Can I say about your earlier program Yes, where the please. gentleman was saying? Yes, please. Now, in central government and in state governments, more than 20 lakh posts are vacant. Why you don't fill up this post? So 5 trillion, Adani will become the richest man in the world. Yes. But what about the last man, the contract laborer who is keeping the Who's keeping the city safe? Submit Patra couldn't tell how many are there. We want to know what is the fate of the last person, the Dalit contract Safai worker, the workers who are working in mines. And the workers Now there who are still people who are trapped inside. the tunnel, yes. Yes. In Uttarakhand, yes. 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 And you see all the channels, how much footage is given to them. Just imagine Almost. if a hero or heroine would have trapped. Hero is trapped, heroine is trapped. These are the real heroes, These sir. are not heroes. Yeah, these are not heroes. These are unsung. Unsung heroes. Right, Mr. Ranade, great pleasure talking to you, even though what you have to say is very, very disturbing. But we'll be in touch. Yeah. I hope you'll keep your promise and you'll take us everywhere. Yeah, any day. Right, thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Namaskar. Great pleasure having you on the channel, sir. And really proud of you. Really proud of the work you're doing. Hats off to you, sir, and more courage to you. Namaskar. Thank you. Namaskar. It's a challenge. So nothing It's a has huge changed, challenge. Pradeep ji. Nothing Yes, has changed. yes, मतलब कुछ yes. बदला नहीं है साहब. करेंगे कोर डाउन सब बोलते हैं कि हम आपके लिए आए, हम आपके लिए करेंगे, बट जी 7 साल पहले 8 साल पहले हम लोगों ने इन्हीं के साथ प्रोग्राम किया था. बिल्कुल बिल्कुल. और अभी तक स्थिति वही की वही है. ओनली इट इज नाउ डिटीरियोरेटेड. जो 1251 परमानेंट लेटर जो दिए गए थे, अब बीएमसी कहता है कि साहब हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत पढ़ा, तो अब वी वांटेड टू बी रिवर्स्ड. सर ऑर्डर गलत कैसे पढ़ सकता है? इतने बड़े लीगल डिपार्टमेंट के पास. It's a joke. It's a joke. If they are approaching the Supreme Court saying that we want to withdraw the permanent letters that you have issued. Because we read your order wrongly. Oh God. Well, that's India. Well, that's just about it. Well, everything is not doom and gloom, all right? Even though I don't really know how to cheer myself up now after seeing this. But you know what? Pankaj Advani has just won the World Billiards Championship title for the 26th time. 26th time he's become champion in Doha, Qatar, and nobody's talking about him. Now, come on. You've got a world champion out there, man. 26 times he's won it, Pradeep ji. बिल्कुल. Of the IBSF. Look at his commitment. Yeah, the International Billiards Snooker Federation. He's won the world title. Pankaj Advani. And we're still talking only about cricket. Yeah, well, I love cricket, sure, but this is amazing. And of course, my own favorite football coach, Arsene Wenger, is here in India to try and develop football in India on behalf of FIFA. That's because FIFA has seen the huge potential in India for the development of football after seeing the amount of money that BCCI and ICC earns from cricket. So maybe things are happening in the right direction, perhaps. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji और मेरी तरफ से आज सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. आप देखते रहें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर भेजें भाई. बहुत जरूरी है. आप लोग क्या सोचते हैं हम लोग जरूर जानना चाहते हैं. आप सब लोगों को वंदे मातरम. Vande Mataram.